you can start with the welcome. ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट। सभी साथियों को स्वागत है। अनाज डाल रहे हो क्या? Yes, just 1 second. We're already streaming live, so I thought I'll start. Just hold on, because वो फिर recording में important. Sorry. हाँ जी, yeah, go ahead and recording will also. Go ahead, Kavita. सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत. Welcome all friends. This is a very, very important meeting and we thank all of you, 390 already at 5:35, which shows the concern that the country has for the people of Ladakh. The people of Ladakh, under the leadership of Mr. Sonam Wanchuk and all other friends, are fighting with actually the government policy to save the Himalayas for all of us. For us who live in the desert, who live in the plains, the hills are so important for our honeymoon, for our, to just cool off. We'll go off to the hills. We don't bother what happens to people who live out there. A lot of us just see it as, part of fun, part of our happiness moment, not realizing that the kind of struggles that people have to undertake in these regions and the entire Himalaya region is in a crisis. We just saw how the Teesta dam broke and there were such deep floods. The entire we're seeing Joshimat and what's happening out there. So friends, this particular struggle taking place in Ladakh and the form is fast unto death, led by Sonam Wanchuk ji and one other colleague, and every day thousands of citizens are sitting as part of a token fast, shows the concern. On the one side, the military is encroaching, the Chinese army is encroaching. On the other side, industrialization is devastating that region. So we today have to stand in solidarity with the people of Ladakh, not just in solidarity with their struggle, but in solidarity with the whole region, with all of us to save the Himalayas. So, friends, we'll start this meeting by everybody accessing their chat, and put on the chat message who you are. Leave your phone number and email, because this is going to be a long fight. This is going to be a long struggle. We may have to meet many times. Today we are meeting virtually, which doesn't mean that we don't have to go there. We'll have to plan trips out there also if this continues. So friends, please write your name, your organization's name if you belong to one, your phone number, your email, so that we can contact you further. This meeting will have many speakers sharing the situation in Ladakh. We'll have Mr. Ashish Kothari. He is one of our best environmentalists. We're so proud that today, even though he's miles and miles away in Pune, but he's kept in touch all along, trying to understand, documenting. He and his team at Vikalp Sangam has been continuously working on this. So we're very glad that he, sort of initiated this whole thing, brought us all together. And we thank all of you who have joined us today. So we will have Ashish giving us the background. Along with him, we hope Sonam ji is able to join us. We hope the link is able to open and he's able to join us. And because he is going to speak right from the Dharna Sthal. सोनम जी धरना स्थल से अपनी बात रखेंगे, आशीष जी एक पृष्ठभूमि हमको देंगे, और उसके अलावा हमारे कुछ अन्य संघर्षशील साथी, पर्यावरण साथी
जुड़े हुए हैं लद्दाख से। लद्दाख मतलब करगिल ले दोनों जगहों से वो जुड़ेंगे। तो साथियों, मैं अपनी बात सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं इस वक्त रोकती हूँ। और जब हमारे वक्ता बात रखे, हम लोग जितना संक्षिप्त हो सके, जितना संक्षेप में, if we can be brief and say our things in 3 to 4 minutes, nothing like it, because there is a long list of people who would like to speak. So over to you, Ashish, and we move on to you giving us the perspective. Can the Vikalp team post the statement put out by all of you, the detailed notes that and fact sheets that you all have put out? Can all that be posted on chat so that people can save it? Thank you. Go ahead, Ashish. And please pin people, if you can, spotlight people when they're speaking. That just makes it easier for those who are on YouTube and otherwise. So if you can spotlight our speakers, the technical team, that'll be very good. Yeah, go ahead, Ashish. So thanks, Kavita, and thanks to you and everybody else, everybody also from PUCL and NAPM, National Alliance for People's Movement, and Vikalp Sangam for helping to organize this. I'll just give a very brief overview. I am not speaking on behalf of Ladakh. We have 5-6 wonderful Ladakhi friends with us who will speak on what's happening there on the ground. I think what's very important is that there are actually hundreds of organizations and thousands of people across India and today, in fact, across the world, who are expressing solidarity with what is happening in Ladakh. ये समझते हुए कि जो लद्दाख में हो रहा है वो पूरे भारत, पूरी दुनिया में हो रहा है इन सम सेंस और दी अदर, और इसलिए जो लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं ना केवल खुद के लिए पर पूरी दुनिया के लिए, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू आल्सो बी एबल टू बी इन सॉलिडारिटी विद, एंड विल हियर मच मोर इलैबोरेशन फ्रॉम आवर लद्दाखी फ्रेंड्स. इसका एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट परिप्रेक्ष्य देना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज it is important to understand that Ladakh, which was actually an independent kingdom for over 1,000 years, and then was brought under subjugation over the last couple of 100 years, has always felt neglected or alienated, whether it was under Jammu and Kashmir state or now, especially even more so, under New Delhi as a union territory. This is actually this feeling of neglect and alienation, and in fact the fear of what could be coming is even more so in the last few years, since 2019, when government of India took the drastic action against both Jammu and Kashmir and Ladakh. At that point in time, Leh district people were happy, but they soon realized that actually being under New Delhi is possibly even worse. तो एक तो ये जो एक power base जो shift हुआ है away from Ladakhis themselves to now sitting in New Delhi, और दिल्ली जो निर्णय लेती है, the kind of decisions it is taking with respect to Ladakh, with respect to how the 6,000 crore rupees per annum budget has to be spent, most of that is happening through politicians and bureaucrats who are sitting outside Ladakh, who don't necessarily understand, or maybe sitting in Ladakh as part of the UT administration, but are from outside and don't actually understand the absolutely unique cultural, ecological, social features of Ladakh itself. A lot of the visioning that is taking place, for instance, recently a Vision 2050 was made for Ladakh, और वो बनाया था Ernst & Young company ने, as if people in Ladakh don't have the expertise to create their own visions. If you look at a recent industrial land allocation policy, a proposed policy for allocating lands for industries, though it says that only Ladakhis will be considered, the proposal, the clearance process itself has nobody from Ladakh, none of the Hill Council members, none of the Panchayat members, local communities वगैरह, उसमें कोई भी जो single window clearance process है उसमें है नहीं. The biggest fear actually, I think, for all of us, and especially for Ladakhis, is to do with land, including nature and natural resources. क्योंकि सबसे बड़ा डर ये है कि अगर बाहर से लोग decisions करेंगे, people across the country are already eyeing the land and the natural resources, including minerals, water, etc., for profit making. तो उससे क्या impact होगा, ecological impact, social impact जो है, that is one of the biggest issues.
We know that since 2019, especially, a lot of companies are actually eyeing this for mega tourist projects, for dams, for mining, and so on. And right now, a very active proposal for a mega solar project over something like 20,000 acres of land in Changthang, one of the most fragile ecosystems of the country, and an area which the people who are currently on agitation, including Sonam Wangchukle, have said that they're going to be doing a long march to that area to show what's happening to the nomadic communities, the wildlife, the ecosystems, including the incursions of the Chinese in the border area there. You know, the way the central government sees Ladakh, जिस तरह से वो जिस नजरिया से देखती है लद्दाख को, वो शायद भारत के सारे सो कॉल्ड मार्जिनल या पेरिफेरल एरियाज को इसी तरह से देखती है. 3 or 4 kinds of hegemonies that I can think of, dominations that I can think of. One, commercial, industrial, profit making. और इस तरह के वास्ट लैंडस्केप में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है फॉर एक्सट्रैक्टिव, डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. तो एक तो वो है. दूसरा है कि उसको एक सिक्योरिटी जोन की तरह मानते हुए, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ बॉर्डर एरिया, to actually establish or continue to sustain some kind of militarized control. Third is religious hegemony. One of the most interesting things that's happened out of the current movement and agitation is the coming together of Kargil and Leh, the Islam and the Buddhist populations of Leh and Kargil, and I'm sure people like Sajjad Leh will talk about that. And that is something that is not digestible to the central government at all. और ये इस तरह का एक रिलीजियस हेजेमनी एस्टैब्लिश करने का भी काफी जगह पे हो रहा है. एंड फोर्थ, द नैरेटिव इटसेल्फ, कि लद्दाख को सो कॉल्ड कार्बन न्यूट्रल, सो कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूरा जो एक छवि बन रही है, एक नैरेटिव जो बन रहा है, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज नॉट जस्ट लद्दाख, बट इफ यू लुक एट इट, ऑल दीज 4 things are true for whether it's Kashmir, whether it's Manipur and the rest of the Northeast India, Lakshadweep, Nicobar, Kutch. इन सब एरियाज के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरह का विजन है. एंड सो देयरफॉर इट्स क्रूशियल फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दिस and to be able to support the struggles in Ladakh and these other areas. Also, of course, the Adivasi dominated areas in central India. So basically, all of these are being viewed as in order to establish these sorts of hegemonies. And I think people like Sivan Rigzinle, Sonam Le, Sajjad Leh, etc., will be explaining this better than me. The other very crucial reason why the rest of India needs to wake up to what's happening in Ladakh and support and be in solidarity is the ecological functions. I think Sevang, Namgyal Leh, Karma Leh, etc., will also be explaining this better. Even if you take just water, the water security of the whole subcontinent depends on what we do in places like Ladakh and, of course, the rest of Western and Northeast Himalaya, in terms of the glaciers, the runoffs, the snow runoffs, the rivers, all that originates across here is the lifeline for 1.5 to 2 billion people. तो ये एक छोटा सा 300,000 people का struggle है, इसको हम ऐसा ना समझे, but ये समझे कि actually पूरे Indian subcontinent के लिए struggle है, and we must be in solidarity with that. I just wanted to add these things and say that the ways in which we express solidarity, of course, through these webinars and online meetings and all of that, but also twice now, I think on the 17th and also today, many thousands of people across India have joined in the fast, in the climate fast. There are other sorts of actions also being proposed, and I would request all the 500 plus people who've joined that if you haven't joined any of these actions, yes, please do it. The smallest possible action would actually be absolutely crucial. So on behalf of all the 3 organizations, thank you again, everybody, for coming here. We express our very strong support and solidarity, and will continue to be standing in support of everything that is happening in Ladakh, the climate fast, and all the other agitations, both in Leh and in Kargil. I think our friends from Ladakh, I've just mentioned all of them, and also including Kunzangle and others, bringing in the ecological, cultural, social, economic aspects, will, I'm sure, elaborate that. Jule Panchukle, good that you've been able to join, Jule. So yes, Jule, Welcome, everyone. Sonamji.
आपका बहुत thank बहुत you. स्वागत जुले। So, Vamshikli, I have just very quickly given a very broad context. मैं अपनी बात अब खत्म कर रहा हूँ, and I think Kavita, please take over, and maybe we can start with Vamshikli and then move on to Sajjad. Thank you. तो सोनम जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जिंदाबाद, क्रांतिकारी अभिनंदन। आप जो कर रहे हैं वो हम सब के लिए कर रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। हिमालय को बचाना तो हिमालय जैसा ही काम है, उतना ही चुनौती वाला। और ये इस काम में आप और आपकी पूरी टीम और लद्दाख के लोग हमारी प्रेरणा है। और इसीलिए अभी हम लोग 525 लोग आज जूम मीटिंग में जुड़े हैं, आपके साथ एकजुटता दिखाने के लिए, और आपके साथ हम शामिल हैं इस संघर्ष में। मेरे और सारे साथी लोग बोलेंगे, तो मैं ज्यादा न बात करके सभी साथियों को बोलना चाहूंगी कि अब हम लोग सोनम जी को सुनेंगे जो धरना स्थल पे है। आज आपका 19वां दिन फास्ट का है, और आपके साथ आज भी शायद हजारों लोग बैठे हैं। रोज हमने सुना है हजारों लोग बैठते हैं। तो लद्दाख के लोग जी जान लगा के, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ और इस हिमालय को बचाने में लगे हुए हैं। तो हम अब आपको सौंपते हैं। आप बताइए, दरअसल ऐसी चुनौतीपूर्ण माहौल क्या हुआ कि आपको अनशन पे बैठना पड़ा? यू हैव टू सिट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ। अपने आप पर इतना ज्यादा जुल्म करना कि 19 दिन से आप कुछ खाए पिए नहीं हैं। सरकार के साथ क्या हुआ? कहाँ पे सरकार ने आपको नहीं माना? और दूसरा, अभी क्या लगता है, सरकार आपको सुन रही है? कोई वहां से आए हैं लोग आपसे बात करने, आपकी टीम से बात करने? और दूसरा, आप लोग को क्या चुप करा गया है? अक्सर हम लोग जो प्लेन्स में हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सीधा सीधा चुप करा दिया जाता है। काफी दमन है। क्या आप लोगों ने कुछ दमन भी सहा है? द फ्लोर इज योर्स, सोनम जी। Please go ahead. Please tell us what's happening and why you've had to undertake this really, really difficult fast. Go ahead. नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के समर्थन और सहयोग का। आशीष जी, मेधा जी, कविता जी और मेरे लद्दाख के साथी और बहुत सारे जो यहाँ पर शायद दिख नहीं रहे हैं, उन सब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो हाँ, लद्दाख की कहानी ये अभी बन चुकी है एक सत्य की जद्दोजहद और पर्यावरण की और लोकतंत्र की। पर्यावरण और लोकतंत्र तो पहले से ही रहा है, जब से लद्दाख अलग हुआ एक केंद्रीय प्रशासित प्रदेश के रूप में। तो लद्दाख के लोगों की उम्मीद थी कि उन्हें जो संरक्षण, यहाँ की धरती, यहाँ की जलवायु, प्रकृति और जो जनजातीय जनता है, उन सबको 6वें शेड्यूल में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 97% जनजातीय जनसंख्या है। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, सरकार ने वादे किए थे अलग अलग मीटिंग्स में, जो कि मिनट्स में भी दर्ज हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ट्राइबल मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, सब ने रेकमेंड किया था। और 2 चुनावों में तो साफ साफ पहले, दूसरे, तीसरे बिंदु की तरह ये आप वादे हुए घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में। तो ये वादे सरकार की तरफ से ही आए हैं। बस इतना था कि कुछ महीनों, साल के बाद वो वादे याद दिलाना भी एक तरह का जुर्म हो गया। याद दिलाने पे, आवाज देने पे ही बच्चों को थाने ले जाने लगे, डराने लगे, और हम उस वक्त लोगों को शिक्षित करने लगे कि ये कैसे हक बनता है, और अब तो ये वादा भी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब ये सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण की नहीं, बल्कि सच्चाई की लड़ाई भी बन चुकी है। क्योंकि
अगर इस तरह से चुनावी वादों के साथ बर्ताव किया जाए, आप कुछ भी वादा कीजिए और जीत जाइए चुनाव, और फिर उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं, तो ऐसे वादे तो कोई भी करेगा और हर चुनाव में दशकों तक करते रहेंगे और जनता के पास कोई उपाय नहीं रहेगी, तो चुनावों का भी मतलब नहीं रहेगा। और फिर मैं कहता हूं कि नेताओं को देख के जनता भी ऐसे ही वादे तोड़ते रहेंगे और भारत एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा, जिसमें किसी के जबान का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई किसी समझौते पर, किसी अकॉर्ड पर चलेगा नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लोग हमसे कोई काम भी साथ नहीं करेंगे। ऐसी भारत की छवि होगी। तो हमें अच्छे उदाहरण साबित करने होंगे ताकि देश के लोगों को नेताओं से अच्छी सीख मिली। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। तो इसलिए भी अब हम अनशन पर बैठे हैं, सिर्फ लद्दाख के संरक्षण की नहीं, पूरे देश के लिए एक सच्चाई की लड़ाई भी है कि ऐसे घोषणा पत्र का सम्मान किया जाए जब लद्दाख के लोगों के साथ किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इनके साथ कुछ भी कर लो, कोने में हैं, देश के किसी को कुछ कानों कान खबर नहीं पड़ेगा। तो अब हम वो शोर मचाना चाहते हैं कि पूरा देश जान जाए, और फिर तब भी अब अगर ऐसे ही भरोसा करते रहना चाहते हैं तो फिर किस्मत आपकी। वरना इतनी आवाज उठनी चाहिए देश में कि सरकार मजबूर हो जाए कि ये तो हमें वादा पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में हमारे दस्तावेजों पर, घोषणा पत्रों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो बाध्य होंगे कि पहले लद्दाख के साथ किया हुआ वादा बराबर करें 5 साल पहले का, और फिर नए वादे करें औरों के साथ, नहीं तो उन वादों का कोई मतलब नहीं है। तो ये दूसरी लड़ाई है। तीसरी जो मैं कह रहा था जमहूरियत की, लोकतंत्र की, वो इसलिए कि इस समय लद्दाख एक मतलब अ, पुराने कॉलोनी की तरह हो गया है। हमें कोई दूर का कमिश्नर या उपराज्यपाल आके यहाँ शासन चलाते हैं, जिनका लोगों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो आते हैं बाहर से और 3 साल चलाते हैं और चले जाते हैं। बाहर से आने से कोई समस्या नहीं है, सिर्फ ये है कि उन्हें समझ नहीं आएगा ये परिवेश। ये लद्दाख इतना अलग है कि ये, मैं तो कहता हूँ, ये मार्स से ज्यादा मिलता है पृथ्वी से। तो मार्स को कैसे चलाना है कोई लखनऊ से आके कैसे समझेगा? तो इसलिए हमें समस्या है। और ऐसे में वो गलतियां कर बैठेंगे, बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठेंगे, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। गलतियां तो वो करेंगे जो बहुत अच्छे साफ लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट्स में भी। जो साफ नहीं होंगे वो तो बेच देंगे यहाँ के वादियों को, पहाड़ों को, उद्योगों को, और फिर हम उसको भुगतते रहेंगे, हम बेघर होके सड़कों पर पहुंचेंगे। ये हाल होने वाला है हमारा। तो इसलिए हम आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कि ऐसा हाल जो आप हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तक देख रहे हैं, वैसा या उससे भी बुरा लद्दाख के साथ ना हो। तो करने का अब वक्त अभी है, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि शुरू में ही अगर हम इसे रोक लें चिंगारी को, तो आग नहीं बनेगी ये। तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पे डटे रहें। तो इसलिए मैं अभी 21 दिन के अनशन पे हूँ, और जरूरत पड़े तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मगर लोगों का यहाँ पर बहुत दबाव है। बिलक बिलक के मतलब सैनिक आके रोते हैं मेरे सामने, भूतपूर्व सैनिक, कि आपके सेहत को कुछ हुआ तो फिर ये जंग भी खत्म हो जाएगी। तो अब हम एक और फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि ये रिले फास्ट चलता रहे। मेरा खत्म हो 26 तारीख, तो उसके बाद महिलाएं 10 दिन का करने वाली हैं, 10 दिन का अनशन। उसके बाद फिर युवा, उसके बाद फिर भिक्षु, उसके बाद फिर बड़े बूढ़े, इसके बाद फिर नोमैड जो चरवाहे हैं, खाना बदोश। इस तरह से करते जाएंगे, इसे खत्म नहीं होने देंगे। ऐसा यहाँ चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि आपके सारी संस्थाएं इस जद्दोजहद में साथ देंगे, सिर्फ लद्दाख के संरक्षण के लिए नहीं बल्कि भारत को बचाने के लिए भी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
लद्दाख बहुत ही सीमा पर संवेदनशील जगह है, जहां एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और यहाँ के लोगों के मन को ठेस पहुंचे तो उसका सीधा असर पड़ेगा। अगर अगर भारत सीमा पर कोई संघर्ष हुआ तो लोगों के मनोबल का उस पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग आधा तो लोग करते हैं, आधा सैनिक, आधे से ज्यादा सैनिक करते हैं, मगर कम लोग नहीं करते हैं। यहाँ की साधारण जनता युद्ध भूमि तक चली जाती है। अगर उनका मनोबल कम हुआ तो सैनिकों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मगर मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो अभी की सरकार है, उन्हें उसका भी फिक्र नहीं है लगता है। उन्हें भारत चाहे युद्ध में हार भी जाए उसका फिक्र नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी अगर संवेदनशील सरकार हो तो वो ये देखेगी कि ऐसे सीमा पर लोगों को ठेस पहुंचाना देश के हित में नहीं है। इनकी छोटी सी तो मांग है, उसको पूरा कर देते हैं। मगर उनका अहम है या फिर उनका लालच है सत्ता का या किसका, मुझे नहीं पता। वो इतना बड़ा है कि वो देश की सुरक्षा को भी ताक पर रखकर अपने अहम के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं देंगे लद्दाख को। या हमें, हमारा यहाँ पर एक मानना यह है कि उन्होंने इतना बड़ा कीमत ले लिया है लद्दाख का उद्योगपतियों से, खनन गुटों से, कि अब वो वापस भी नहीं जा सकते। हो सकता है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के 8,000 करोड़ में से शायद 2-3 हजार लद्दाख की कीमत हो। तो जो भी है हमें नहीं पता, मगर कुछ ऐसा समस्या है कि वो अब इतनी छोटी सी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। मतलब यूटी देना बहुत मुश्किल था, वो दे दिया, मगर जो छोटी सी कोट दे दिया, मगर बटन देने में इतनी तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब इस बटन में कोई राज छुपा है जो शायद हमें नहीं समझ आ रहा है, जिसके वजह से वो इतने हट पे खड़े हैं कि एक छोटी सी चीज जो आराम से दी जा सकती है, यूटी बनाने के लिए तो 370 हटाना था, जो कि लगभग नामुमकिन था, वो उन्होंने किया। अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता ज्यादा। लद्दाख के लिए ये एक ही तरीका था कि लद्दाख अलग हो सकता था जम्मू कश्मीर से, जो कि लद्दाख की मांग थी। तो उतना करने के बाद अब सिर्फ 6 शेड्यूल या लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ के जनता को लोकतंत्र देना, उपराज्यपाल पर न छोड़ देना, यहीं पे असेंबली हो, चुने हुए प्रतिनिधि अपने सरकार से अपने ख्वाहिशों के अनुसार यहाँ की व्यवस्था प्रबंधन चलाएं, वो छोटी सी मांग न दे पाना अपने आप में बहुत हैरान कुन है। तो यही मैं आप लोगों से बांटना चाहता था। बाकी जैसा मैं कह रहा था आप लोगों के साथ कि हमें निरंतर उम्मीद रहेगी अपने अपने जगहों से। आज पूरे भारत में करीब 50 शहरों में कहते हैं सभाएं हुई। तो इस तरह से अगली बार आप भी सब अपने अपने शहरों में करें तो लद्दाख और देश के लिए बहुत बहुत मायने रखेगा। धन्यवाद। सोनम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा भी है। अब उनकी आपके साथ एकजुटता, आपके संघर्ष को सलाम। और सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, वी विल पुट देम ऑल टुगेदर। और जितने लोग जुड़े हैं उनके भी हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। मुझे लगता है ये लड़ाई, एक ने लिखा है, ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली में हमको लड़नी होगी। और आगे निखिल ने लिखा भी है कि ये तो बुनियादी मुद्दा है। जो आपकी लड़ाई है वो एक संवैधानिक लड़ाई है। आप प्रेरणा है और आपके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं लोग। तो सोनम जी से अगर कोई सवाल वगैरह है, जब तक सोनम जी हमारे साथ है, वहां उजाला काफी दिख रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपसे हमारे साथ थोड़ा लंबा रुक सकते हैं। आप सवाल नहीं, चाहे मैं बॉक्स। सिर्फ कहूंगा बहुत ही जरूरी सवाल हो जिसके बिना न चले तो वो हाँ हाँ पूछिएगा। मैं हाँ। ज्यादा, मुझे नहीं कहते हैं, नहीं, नहीं और बोलना चाहिए। साथी लोग हैं, वो लोग भी जवाब दे देंगे। तो जो भी सवाल लद्दाख लद्दाख को बचाने के और संघर्ष के और मांग, बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपकी दो मांगे हैं वो हैं शेड्यूल 6 के क्षेत्र आपका डिक्लेयर किया जाए। वहां पे सारे लोग आदिवासी हैं, लेकिन आपको शेड्यूल 6 स्टेटस नहीं दिया। और जमहूरियत का, लोकतंत्र का
आपको बोला है। हमने इंग्लिश में समरी ट्रांसलेशन लिखा है। प्लीज स्क्रॉल अप फ्रेंड्स। Full summary translations of what Sonam ji said has been put up for those who cannot understand English. We just decided we will not do translations because that will take up a lot of our time. So we move on to our other speakers. Very briefly, now our friends from Ladakh के दोस्तों से गुजारिश है that please speak for 3 to 4 minutes maximum. I now invite Sajjad Hussain from Kargil. थैंक यू आशीष जी, कविता जी, मेधा जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज यहाँ सोनम वांगचुक जी को भी बुलाया, बहुत खुशी हुई। पिछले 16 दिन से सोनम वांगचुक जी पूरे लद्दाख के लिए और पूरे देश के लिए अनशन पे हैं। आज मैं यहाँ कारगिल में भी हमारा अनशन यहाँ आज से चल रहा है और 27 तारीख तक ये रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है, 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने जो वादे किए थे, खासकर लद्दाख में डेमोक्रेसी का मर्डर करके लद्दाख को एक उपराज्यपाल के सहारे और ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे पे छोड़ दिया था। और उसके बाद जब हम 4 मार्च 2024 को सब कमेटी के द्वारा, मैं खुद भी उसमें शामिल था, जब हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने यूटी देकर लद्दाख को बहुत बड़ी गलती की। मैं समझता हूं कि अब यह गलती सुधारने का वक्त है। होम मिनिस्टर को चाहिए कि अब लद्दाख में 6ठे शेड्यूल जिसका वादा इनकी पार्टी ने किया है वो जल्द से जल्द दिए, और साथ में लद्दाख में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो। पूरी दुनिया में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, लेकिन जब लद्दाख की बारी आती है, और यहाँ लद्दाख, जैसे कि आपको मालूम है, सोनम वांगचुक जी ने भी कहा, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। हमारा वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। हम लोग जो है आईएनईएस का काम करते हैं इस देश के लिए। हम वी आर द सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म। बट आज जब हमें देने की बारी आती है तो सरकार हमेशा पीठ पीछे करती है। सरकार को इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारी आप लोगों से गुजारिश है, जो आप लोग बेआवाजों की आवाज बनते हैं पूरे देश में, और मेधा जी, आप लोगों का हमेशा हम देखते भी रहते हैं कि आप लद्दाख की आवाज बने। हम लोग वॉइसलेस लोग हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी आवाज में आवाज नहीं दे रहा है। हमारे ग्लेशियर्स की बात की, जैसे सोनम जी ने हमारे इन्वायरमेंट की, 4 साल में लद्दाख में एक गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं मिली। आज हमारे जो बेरोजगार नौजवान है वो डिग्रियां हाथ में थामे बेरोजगार घूम रहे हैं। एक और चीज मैं बताऊं, कल एक न्यूज़पेपर में एक सर्वे रिपोर्ट छपी है जिसमें पूरे देश में नंबर 1 पे जो हाइपर टेंशन में सबसे ज्यादा लोग वो लद्दाख में है। 48% लोग हाइपर टेंशन में मुब्तला हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि लद्दाख किस दौर से गुजर रहा है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ आपसे 2-3 चीजें आप लोगों से गुजारिश करूंगा। पहली चीज कि आप आशीष साहब से भी कि आरटीआई भी फाइल्स करें कि किस तरह लद्दाख में जो है वो कितने कॉरपोरेट्स को ये जमीनें यहाँ बेची जा रही हैं, ग्लेशियर्स बेचे जा रहे हैं, यहाँ का रिसोर्स बेचा जा रहा है। और दूसरी चीज, आप लोग हमारी आवाज बने और जहां जहां मुमकिन हो लद्दाख की आवाज बनकर यहाँ के इन्वायरमेंट का इशू, यहाँ के लोगों बच्चों के जॉब्स का इशू, नौकरियों का इशू, और बिलखुसूस यहाँ डेमोक्रेसी का ना होना, डेमोक्रेसी का गला घोंटा गया है और यहाँ आवाज भी उठाने नहीं दी जाती। तो इस डेमोक्रेसी के इशू को बहुत सीरियसली उठाने की जरूरत है, ताकि लद्दाख में लोगों को अपने ही चुनने का, अपनी ही हुकूमत चुनने का मौका लद्दाख के लोगों को मिले। मैं यहाँ कारगिल के जितने भी लोग हमारे यहाँ फास्ट में हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हैं, और सोनम जी की तरफ से, पूरे ले एपेक्स बॉडी, पूरे लद्दाख की आवाम की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने ये एक अहम विषय पे जो है वेबिनार रखा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये वेबिनार से हट करके आप इस इशू को जो है ग्राउंड पे भी उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Very briefly, friends, summarizing what Sajjad said, he said they've been left at the mercy of a deputy governor, exactly what Sonam ji also said. And Mr. Amit Shah himself had promised them Schedule 6 and restoration of democracy, which they haven't yet got. The way the entire region is being sold, the glaciers are being sold and other parts are being sold. He wants Ashish and his team to file RTIs to get all this information. And today's webinar, of course, he's very happy that he's a part of it, but feels that we'll have to do much more in order to ensure that these demands are met. Thank you. We go ahead. Is Sering Dorje around? Is Sering Dorje? Sering Dorje is not there. Bring Sering Namgyal. Please bring Sering Namgyal.
You mean Sevang Namgyal? Sorry, Sevang Namgyal. Sorry. So, Mr. Sevang Namgyal, Yeah. please. Yeah. Thank you so much. आपका बहुत बहुत स्वागत, नामग्याल जी. Please go ahead. अपनी बात रखें. Thank you so much, Kavita, Ashish, and all the three network and organizations for organizing this webinar, which is very timely. And we need support today more than ever before. So thank you so much. Sajad Kargil Saab and Ka Wangchuk and Ashish also talked about the importance of the sixth schedule. And I'll just briefly talk about the environmental issues in Ladakh, just briefly, because we don't have much time. And when we talk about the environment and the fragile ecosystem of Ladakh, one thing that people all across the country need to understand is the uniqueness of this landscape. You know, there is a landscape called the Trans-Himalayan landscape. And if you look at the distribution of that landscape in India, more than 90% of that landscape occurs in Ladakh. And it has a very unique culture evolved here and a very unique biodiversity that has been attracting people from all across the world. Today, it is one of the most important tourist destinations in the country. So it's really drawing in a lot of people from across the world. And that is something that all of us need to keep in mind. It behooves all of us, all the citizens of this country, to really protect and conserve this landscape because of its uniqueness. And that is something that I really wanted to share with all the participants today. The other thing that I would talk about is the importance of the wild animals. Today, it is not just about the livelihoods and the culture of people. It is about the lives of thousands and thousands of animals whose lives are also at stake. And that is something that we need to realize. The animals that have been sustaining the people in these remote mountains and remote valleys for centuries. And just to give you an example, I don't have much time to go into detail. The snow leopard controls the population of the mountain sheep and goats, and which prevents overgrazing, and that promotes plant regeneration on the mountain slopes, and that prevents flooding. So now you can see the ecological link between the snow leopard population and floodings. And mind you, most of the Asian rivers are originating in snow leopard habitats in Ladakh and in this Himalayan mountains. So if we do not pay attention to the population and conserve the population of these animals in these mountains, then the water availability, both for drinking and irrigation, to about 1/3 of the world's population would be affected. And that is something we need to keep in mind. I think water is going to be very precious resource, and people say that there might be wars, actually people might fight over the issue of water. So that is something that we need to understand. And another thing that I would like to drive the message home is that the importance of the areas for these animals. These are not like animals that we have in the plains of India, which can really rely on a small territory because the resources are very abundant there. But in the mountains, resources are very scattered and they are dispersed all over the landscape. So they have to cover huge areas to really acquire the resources to sustain even small populations. And mind you, these animals have been providing ecosystem services. Like I'm talking about to the mountain sheep and goats now. They support the snow leopard. And I told you the importance of the snow leopard, how important it is to conserve the
the snow leopards. And so this also goes for the Pashmina herders, the Pashmina goat herders. They also need huge territories to really graze and sustain the herds, the livestock that they have. And yeah, so Pashmina is a very important industry, and something that all of us need to realize, that the Dogra kings had actually invaded Ladakh for Pashmina. And today, when we talk about the importance of having statehood and legislative assembly in Ladakh, they say that where are the resources? And this is the resource that historically Ladakhis really try to fend and defend, so that we can have our own livelihood options. And today, of these states, both the livelihood of the Changpa nomadic herders and their culture and wild animals, Please all of them summarize are it. at stake, is something that Sivangji, if you could understand. just Yes. So just conclude. summarizing now, what is happening is that many springs all across Ladakh, in the interior parts of Ladakh, are drying up. And because of that, many of these wild animals are converging, coming down to the Indus to drink. And along the Indus, they have planned a lot of projects. Already things are happening. And the route to the water for these animals would be blocked. And that is something that we need to keep in mind. Yeah, so with that, I'll just, I mean, there are so many issues that I can go on and on talking about, but basically, yeah, these are some things that all of us need to understand. Is not just for Ladakh, it's for us, but for the entire country, and the water security of the country is something that we need to keep in mind. Thank you so much. Thank you so much, Sivang Namgyal-ji, for so clearly laying out the canvas and bringing the other living beings, bringing the animals and how important they are for that region. We are extremely pleased that Sharing Dorje-ji has also joined. But before I call him, I'd like to call Mustafa Haji. And I think now we will have to really speak for like exactly 3 minutes. Mustafa Haji ji, if you could join us. Can he be upgraded? I think he was very much in the room. He's already. Yeah. Mustafa ji, please switch on your video. And you can remove the spotlight from Sivang Namgyal ji. Go ahead, Mustafa ji. Please go ahead. Hello. Yeah. Hi. Yeah. Can you Hello. see me now? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Oh, We all can't right. see you, but we can hear you. ऑल राइट। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसको प्रोग्राम को करने के लिए, और मैं हमारे जो सोनम वांगचुक साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, तो कि 18 दिनों से ही हैज बीन फास्टिंग, बट बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ टाइम, आई विल ओनली फोकस ऑन द मेन इश्यूज दैट आई फील फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ए फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू. तो उससे पहले आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू प्रिजर्व द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट एज पीपल हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, बिकॉज वी हैव सो मेनी endangered species in Ladakh, and the ecology itself is quite fragile. And thirdly, it's a very critically important area in terms of national security. I'll only focus on, because I only have 3 minutes, I'll only focus on the issues that I feel are important from a constitutional point of view. One of the biggest challenges that I see, and the problems that I see in Ladakh right now, is that Ladakh has become a place of contradictions and paradoxes. And why is that? Because as you all know that we were a part of Jammu and Kashmir. We used to have 4 MLAs, member of legislative assemblies, and 2 MLCs in the assembly of Jammu and Kashmir, because it was bicameral. Then post that, on 5th of August, after the abrogation and after the removal of the special status of Jammu and Kashmir, we do not have representation whatsoever altogether. And eventually, when there were multiple petitions in the Supreme Court, what I find interesting is that what I see is a paradox is that the Honorable Supreme Courts, on multiple, in multiple observations, they say that by, demoting a state, full-fledged state with special provisions to a UT was not right. And they did not answer that question completely. And secondly, it says that we need to restore
state in the state of Jammu and Kashmir, restore the assembly in the state of Jammu and Kashmir. Why? Because that is a part of federal structure, and because that is a part of the basic structure, and is an important aspect of the constitution. And that is why it is important to restore assembly in Jammu and Kashmir. But it does not say anything about Ladakh, because we also had the same MLAs, and in a, practically speaking, we are also a state in a way. Therefore, when you remove the special status of Jammu and Kashmir and remove the state and bifurcated the state on the 5th of August into 2 union territories, Ladakh went back to the position of 1947, where there is no any protection for Ladakh whatsoever. We do not have, even after being a, another contradiction is that the National Commission for Scheduled Tribe and multiple organizations of the government of India have recommended time and again after 2019 that Ladakh should be included and it should be made a scheduled tribe area. And yet they have not listened to those recommendations. And the biggest paradox is that they, in their own, as Sonam Wangchuk Sahab was saying, in their own manifesto in 2019, both in the MP election, parliamentary election, as well as the Hill Council election, they had this as one of their major manifestos, that they want to give 6th schedule to Ladakh. And that is how they won in Ladakh in the first place. And that is why the people of Ladakh voted for BJP, and they won, and with huge margin, both in the parliamentary election as well as the council election, which is in process right now in Leh. So that is also a contradiction. And because I do not have time, another problem that I feel is problematic is that the reason why, even after having multiple dialogues with the central government, by our apex body in the Kargil Democratic Alliance, they even asked us to form a committee, the high powered committee. Then they formed a subcommittee, and finally they asked us to give a draft also by giving our demands in the form of a draft. We did all of that, and after that, on the 4th of February, our Home Minister, he calls us, all of us, and he says that we cannot talk to you on the demand of statehood and 6th schedule. That I think is a big I think it's a setback for the Ladakhis. And the reason why I see they not want to empower Ladakh politically and otherwise is that which has been an issue throughout, even when we are a part of Jammu and Kashmir, is that Ladakh is always seen from the point of national security, and the people of Ladakh they get neglected in that perspective. So that is something the government of India needs to change its perspective on Ladakh. Even when you talk about 1999, when you talk about other wars that have taken place in Ladakh, there's always a perspective from the defense point, but they do not give enough consideration to the people of Ladakh. They do not give a humanitarian approach to the problems that the people of Ladakh face. And that's why I believe, until and unless they do not see Ladakh from the point of view of the Ladakhis, there is no way that they can empower Ladakhis. And we being on the border, we see ourselves as guardians of the Himalayas as well as the border. And in that case, the government of India, in our federal structure, they need to understand from the Ladakhis as to how Ladakh should be run. And it should not be from a top-bottom approach. It should rather be a bottom-to-top approach, wherein we tell the government, because our culture is different, our identity is different, our history is different, everything is different from the mainland. As you speak, all of you, I can see fans, I can see you in shirts and half sleeves. We are layered in 3 we have 3 layers on right now as we speak. So everything is different, right from our temperature, weather, and everything. And that's why there's a need to look this issue of empowering Ladakh from the point of view of the Ladakhis. Until unless the government of that does not do that, I do not think there can be a solution to the problem. Thank you so much, Mustafa. Sorry, I've cut you. We always enjoy it's all right. Thank listening to you. We've had very good memories working with you. So I think the point of federalism, constitutionalism has been brought in very strongly. And I think the ball is in the court of many constitutional lawyers who are also in this group to assist us in understanding what to do. I now invite Mr. Shering Dorje. Mr. Shering Dorje be asked to switch on his video, and please spotlight him. Mr. Shering Dorje is at the Leh Apex body. If we could have him. Mustafa was an advocate, and so was Sajad. He's also an advocate. And of course, Namgyal is part of the Snow Leopard Protection Committee, the organization they formed. Can we have Mr. Shering Dorje? Is he not there, Ashish? Can you hear me? Yes. Go ahead. Okay. Can you show your face? Namaste. Video. Video on कीजिएगा.
वीडियो खोल सकते हैं आप, वीडियो को चालू कर सकते हैं, तो गो अहेड जैसे भी। ओके सबको नमस्ते मेरी तरफ से। जैसे कि सबको मालूम है, मैं जब जो हमारा होम मिनिस्टर के साथ जो टॉक्स हुआ था उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि ये किसी ने बताया नहीं है। तो टॉक्स हमारे साथ होम मिनिस्ट्री में 3-4 बार हुआ, और हमारा लास्ट मीटिंग जो था टॉक्स वो 4 मार्च को हुआ। उससे पहले के जो टॉक्स में गवर्नमेंट का शुरू से ही एटीट्यूड टाइम बाय करने का था, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ। जो हमारे मेन मुद्दे थे वो बार बार उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। और एक इशू हमारा ये भी था अनएम्प्लॉयमेंट का, और हमारे यहाँ यूटी लद्दाख में जब से यूटी बना है कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इशू था, उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत चर्चा हुआ और थोड़ा बहुत उसमें पेश रफ्त भी हुआ, लेकिन जो हमारे मेन मुद्दे थे तो उनके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ। और कुछ बाहर ऐसा इम्प्रेशन दिया गया कि जो गवर्नमेंट हमें प्रपोज कर रहे हैं वो उसको हम लेना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअली जो गवर्नमेंट के पास प्रपोज करने के लिए कोई ज्यादा था नहीं, हमारा सीधा सीधा कोई कॉम्प्लिकेटेड हमारा कोई ऐसा डिमांड नहीं था। 6 शेड्यूल के ऊपर बिल्कुल बात करने से मना कर दिया, उसके ऊपर तो कोई चर्चा हुआ ही नहीं। और जो हमारा स्टेटहुड और यूटी विद लेजिस्लेचर का जो हमारा डिमांड था उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और वो लोग चाहते थे, जो हमारा लास्ट मीटिंग हुआ था उसमें गवर्नमेंट चाहता था कि एक पावर प्रेजेंटेशन की के साथ हमें समझाना चाहते थे कि जो 2 ऑटोनोमस काउंसिल है लद्दाख में उनको एम्पावर करने की बात कर रहे थे, और उनके ऊपर एक एडवाइजरी काउंसिल बिठाने की बात कर रहे थे। तो वो तो बिल्कुल हमारे जो LHDC एक्ट में ऑलरेडी है, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है, जो एडवाइजरी काउंसिल है। तो ये तो बिल्कुल हमारे मुद्दे से बढ़ के हट के बात कर रहे थे। तो इस पर तो राजी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ऐसा एक इम्प्रेशन दिया जो 4 तारीख के बाद होम मिनिस्ट्री ने कि टॉक्स अभी जारी है। टॉक्स तो बिल्कुल फेल हो गया है। जब हमारे डिमांड्स को स्ट्रेट अवे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उसको आगे ले जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्जी जी, आपने बिल्कुल समय का ख्याल रखा। डू यू थिंक ही इज फिनिश्ड आशीष या दुर्जी जी? हाँ जी, हाँ जी, आई Yeah, I फिनिश। think तो ले बहुत सही बहुत फिनिश। तो चले आगे कुछ सवाल होंगे आपके लिए तो प्लीज आप रुकिएगा। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। वो बहुत ही सटीक ढंग से very clearly you presented the meeting with Mr. Amit Shah, where they tried to give an impression that great things are being discussed and you were acting difficult, the people of Ladakh. However, they just rejected your demand for 6th schedule. Statehood was also manipulated and no direct answers. Unemployment is a very big issue. I'm glad that has been brought in also. Thank you so much. I think it gives us an opportunity to actually prepare our memoranda on behalf, the rest of us who are here connected, to give it to the Home Minister. I now invite Mr. Kunzang Dichin and then Mr. Karma Sonam. Mr. Kunzang Dichin. मिस कविता, मिस कुंजाम। मिस कुंजांग दीचिन, माफ कीजिएगा कुंजांग जी। बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ हैं। वेलकम।
that proves that even the names of Names this are so region different. I must apologize. Totally. We No, are no, so that's different. all right. That's definitely fine. And since we're talking about the need of the hour, and Ladakh definitely needs the safeguard in a like a more autonomy in a form of sixth schedule or statehood. I would also like to talk about what we have been working for past so many years in my organization is rethinking the conventional development model, and how politically we are drawn towards development model, and we actually we are inspired by it. So development model definitely needs to be rethink, and especially in this at this time where we are looking for self autonomy for a place like Ladakh. Why we need it? Obviously, we talked about tangible things, culture, we talked about ecology, but what about intangible things? What about things that we can't really see, but that it is changing due to the mainstream development model? I mean, that's another thing that I would like to bring in perspective. I've been working in documenting traditional knowledge. So traditional knowledge sometimes can be intangible, like the community feeling that you have when you go to a village while you're working with them is something that you cannot prove or cannot express in a policy. So a place-based policy written by people from that place is very important, which is something that we have been talking about. And I mean, I'm not as experienced as other panelists to talk about political issues. That's why I think I just want to bring in what the knowledge that I have in terms of what we have been working is. Obviously, sixth schedule is very important. Safeguard is important right now. But also for Ladakhis to understand that this conventional model is is needs to be rethink by people of Ladakh as well. Is another very important aspect. So yeah, I mean, I don't have much to add on it, but this is the message that I have. Thank you. Thank you so much. That was also really crisp. And I think it adds another dimension to all of us, to this conversation. And I hope we can take it forward. Mr. Karnam Sonam. थैंक यू सारे पैनलिस्ट और हमारे सारे भारत बार की जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए सारे लद्दाख का जो फ्रेंड लोग हैं सबको जुड़े मैं संक्षिप्त में थोड़ा एक छोटे सी चीज जैसा सिक्स शेड्यूल का जो मसला तो हमारा मेन है उनमें से एक छोटी सी संक्षिप्त में जैसा अभी हमारा असगर घरवाले साहब जैसा बता रहा था कि आशीष ले को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आरटीए थ्रू किस तरह से जैसा यहाँ का रिसोर्सेज जो बेचा जा रहा है ये सारा चीजें थोड़ा सा हमें पता करें तो मैं एक प्रूफली जैसा एक चीजें जो अभी हो रहा है लद्दाख में उसके बारे में जो थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में मैं भी एक एग्रो पेस्टलिस्ट फैमिली से जो बिलोंग करता हूं तो वहां पे सारे लोग जो है पेस्टोलिज्म है तो वहां से आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सोलर पावर प्लांट जो लगाया जा रहा है जिसके लिए वो लोग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारे हार्डर्स का जो पास्चर लैंड है उनको डैमेज करने जा रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े जो एक अलार्म है जो ना अभी जैसा अंशुल साहब ने बताया कि ये जो चिंगारी जो आग जलने से पहले चिंगारी की बात कर रहा था तो ये चिंगारी ऑलरेडी वो लग चुका है मैं समझता हूँ तो ये जो अगर होगा तो अगर ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर से अगर ये सारा पास्चर खत्म होगा तो देखिए वहां पे वो जो पास्चर लैंड जो उनके वो जो जा रहा है वो सारा उनका जो समर ग्रेजिंग पास्चर लैंड है तो
उस तरह की बहुत सारे डैमेज होंगे। एक तो हमारे जो चंगटांग की जो सारे हटा लोग कहाँ जाएंगे, तो उनका जो फ्यूचर का जो लॉन्ग टर्म में किस तरह से उनका जो लाइवलीहुड का वो रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे एक जो आंखों के सामने जो आंखों देखिए कावस है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन बहुत छोटी सी उसमें हम नहीं बता सकते। संक्षिप्त में यही थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और मैं आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो ये दुखी हो रहा था कि मैं वहाँ पे 18 तारीख को अचानक थोड़ा सा कुछ अपने ऑफिस के काम की वजह से यहाँ पे बेंगलोर आना पड़ा। तो वहाँ पे जो सारे लद्दाखी जो आजकल वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, जो फास्टिंग पे बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे नहीं था। और जिस समय मैं आ रहा था 18 तारीख को, हमारा आंचुक साहब का बहुत ही मतलब हेल्थ का बहुत नाजुक वो देख रहा था। लेकिन अभी जो आंचुक साहब हमने ऑन द फेस देखा, तो उनका जो हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट देख के बहुत खुश हुआ था। तो मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके इन चीजों को आगे बढ़ाने का आप लोग को बहुत एक जरिया बनाएगा। हम सब मिलके ये जो मूवमेंट है लद्दाख का, जो अभी पूरे लद्दाख में जो एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, उसका एक दिन कुछ ना कुछ जिसका नतीजा मिलेंगे। इन्हीं की शब्दों के साथ में बंद करेंगे। धन्यवाद सब लोगों को। We will be successful, Mr. Karma Sonam. We will fight, we will win. लड़ेंगे, जीतेंगे बिल्कुल। एंड आई थिंक जिस तरह कुंजांग ने रीथिंकिंग डेवलपमेंट की बात की, आपने उसका एक और पक्ष जो नोमैड्स पास्टरलिस्ट को लेके है, जो खत्म हो रहे हैं पास्चर लैंड्स, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट आपने हमारे हिमालय और लद्दाख के इलाके के बारे में बोला है। थैंक यू द एंटायर टीम from Ladakh, from Sonam to all the others, from Sonam to Sajjad, Mr. Shering Dorje, Mustafa Haji, Sivang Namgyal, Kunzang Dichin, and Karma Sonam. Thanks all of you for laying out the canvas and explaining so beautifully to us what the issues are. We will now, I mean, maybe we could just give a big hand. I don't know how many people are unmuted. There are these technical issues, but let's give a big hand. So, Kavita? Yeah. Sorry, I just wanted to add a very quick word here. Yeah, please do. I was coming to you actually before opening it up. I wanted you to add a few points. Yes. Just a dimension here, which is that along with the protest and the resistance and all, which all of our friends in Ladakh are doing and rest of us are in solidarity, it's important also to note that people in Ladakh are coming up with their own solutions and alternatives to the mainstream model of development. All of the friends who have joined us today, they are showing, local-based livelihoods, local community-led conservation, community-led eco-tourism, homestays. Homestays were originated in Ladakh and now have spread all over the Himalaya. Or crafts, revival of crafts, Pashmina and many other things. Local governance, more direct forms of democracy. इस सब में जो है पुराना या नया एक्सपेरिमेंटेशन लद्दाख में बहुत बढ़िया चल रहा है, which we also need to recognize and to support that they can and have the ability and the power to actually show how Ladakh can be so-called developed or reach well-being in a very different way. Many of us are also working with the Ladakhis on creating a well-being index, so that instead of GDP and the normal development indicators, it could actually be something Ladakhis are themselves defining कि खुशहाली क्या होती है, समृद्धि क्या होती है, well-being क्या होता है. So the alternatives part is also very strong, which I just wanted to very quickly highlight. Thanks. Thank you so much, Ashish, for bringing that perspective. Yes, I'm so glad that you summarized it and showed us how local solutions and decentralized way of governance. So we now move to part 2, and we have a whole lot of people who actually agreed to express solidarity. There are many more than in this room that we can see. Some will join us a little later. So my friends, हमारे सारे दोस्त,
we will not get more than 3 to 4 minutes because we are so many of us. And we don't want the people to leave. We were 500 and we went up to 526, 27. We're down to 441. It's not about numbers, but it is also that we all collectively reach some sort of planning towards the end. What do we do? So all our speakers, there's a suggestion. Of course, you're free to speak what you have to, but apart from expressing solidarity, if you could also tell what we all could do in the rest of India, how can we take this struggle forward, and how can we actually achieve the basic demands that the people are struggling for. So I'll start with Medha. Medha, very briefly, 3 to 4 minutes. It's a test for people like you and me, Medha. Thank you so much. And I salute Sonam Wangchuk ji and his team and all those who have spoken, Mustafa ji and everyone. ये निश्चित है कि लद्दाख एक अभूत इतिहास के साथ एक अभूत भविष्य की तरफ बढ़ रहा क्षेत्र है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और समृद्ध ऐसा क्षेत्र अगर विनाश की तरफ विकास के नाम पर ढकेला जा रहा है, तो जो अहिंसक सत्याग्रही बनकर सोनम वांगचुक जी और उनके हजारों हजारों साथियों ने ये आंदोलन शुरू किया है, उनके साथ हम लोग अंतिम तक रहेंगे। मुझे लगता है हमें थोड़ा देरी हुई है क्योंकि 18 दिन का अनशन हो चुका है, पर ये बहुत महत्व की बात है कि जब लद्दाख एक ऐसी स्थिति, ऐसी इकोसिस्टम है और ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 3 लाख के आसपास होगी, लेकिन 5 से अधिकृत कुछ बलूचिस्तान का क्षेत्र है, अक्साई चाइना का क्षेत्र है, सक्षम वैली का क्षेत्र है, पर सिंधु जैसी एक नदी जो इनकी जीवन रेखा है और हिमालयन नदियों का एक सोर्स और एक क्षेत्र वो है, तो लद्दाख को बचाना बेहद जरूरी है। और जो 2019 तक का इतिहास है वो सब यहाँ नहीं गिना जा सकता है, पर उसके बावजूद लद्दाख ने अपनी स्वतंत्रता बचाई है, ये इतिहास गवाह रखकर कह सकते हैं। तो आज जबकि वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म के नाम पर भी और सोलार यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम पर भी इस प्राकृतिक संसाधनों पर हमला हो रहा है, तो निश्चित जो डेवलपमेंट पैराडाइम हम लोग नर्मदा जैसी घाटी में हो या जोशीमठ में हो, सब जगह सवाल खड़े करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं, उसको यहाँ लद्दाख जो सवाल खड़ा कर रहा है वो पूरे देश के लिए जरूरी है। ये विकेंद्रीकरण, ये डिसेंट्रलाइजेशन का मामला है। जो सेंट्रल पावर्स आज ऑटोक्रेटिकली पूरी एक बर्बाद कर रही है पीपल्स पावर को, लोगों के सहभागिता को, जो संसद में भी नहीं अवकाश देते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ग्राम सभा, शहर की वार्ड सभा, ऐसे यूनिट्स को जो सही डेमोक्रेटिक यूनिट्स और फोरा होने चाहिए और है भी कहीं ना कहीं कानून संवैधानिक दायरे में, उनको वो नहीं मानते हैं। उनको एंटी डेवलपमेंट लिस्ट कहना ये बिल्कुल गलत है। लद्दाख जो मांग रहा है वो अपना हक, हम हमारा हक मानते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो मुझे यही सवाल है कि जो क्लाइमेट चेंज आज कहीं एरिड विंटर जैसी सिचुएशन भी खड़ी कर रहा है, ग्लेशियर्स कभी पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बाढ़ आती है और उससे नुकसान होता है। और दूसरी बाजू कहीं ना कहीं जो स्नोफॉल के ऊपर ही लद्दाख जैसा क्षेत्र पानी के लिए निर्भर है, उस पानी के सोर्सेस पर हमला होता है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पेरिस में या कोपेनहेगन में, रियो डी जेनेरो से लेकर अभी तक जो भी एक प्रकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने विश्व गुरु तक बनकर जो प्रॉमिसेस दिए हैं, वो सब अगर लद्दाख को नहीं साबित करने देंगे तो फिर हम लोग नहीं मानेंगे कि ये इंटरनेशनल कमिटमेंट सही है, वो सब झूठ साबित होगा। जो स्टेटहुड की बात लद्दाख कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उत्तराखंड जैसा भी स्टेटहुड हुआ तो स्टेटहुड से सभी प्रॉब्लम्स नहीं छूटते हैं, ये हमको भी मालूम है, पर फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेटहुड की मांग को नकारना नामंजूर है। और 6
शेड्यूल का जो मामला है, जो मेघालय, आसाम जैसे, त्रिपुरा जैसे में आज भी जारी है, तो वहां ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है, उसके अंदर भी और छोटे फोरा की बात है, और इस पर बहुत ही विस्तार से संविधान में पूरी बात लिखी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित कि संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेने वालों ने ये इस मांग को नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि जब तक कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं होगी, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं होगा, तब तक कभी भी सही सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सोनम वांगचुक जी को सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए अवार्ड मिला है, और उन्होंने गोइंग बियॉन्ड वो जो एक हिल डेवलपमेंट काउंसिल हुई थी, उसके आगे जाकर न केवल सिकमॉल स्कूल से अपनी एजुकेशन के ऑल्टरनेटिव बताए हैं, पर हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर ऑल्टरनेट लद्दाख ये भी एक स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी टेक्नोलॉजी जो निर्माण कार्य में भी उन्होंने बताई है कि कैसे ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल हो सकती है। तो उन्होंने कहीं स्नोफॉल का वाटर स्टोरिंग के भी अलग अलग टेक्निक्स बताए हैं। मैं तो लद्दाख पहुंचने में बहुत उत्सुक हूं, पर पहुंच नहीं पाई हूं आज तक। नर्मदा में भी बहुत हमको चैलेंजेस नए नए आ रहे हैं, पर हम लोगों को लगता है कि लद्दाख को आजादी चाहिए। जो तिरंगा फहराने वाले हैं, पीछे भी है सोनम जी के आज के बैठक के, लेकिन उसमें जो हरा रंग है, जो प्रकृति का है, जो आर्टिकल 48A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सब खत्म करना, और 370 आर्टिकल को एब्रोगेशन करने के बाद जो फर्क हुआ है, उसके कारण लद्दाख के नागरिकों को जो हक मिला है और मिलना चाहिए, मिला नहीं है पर मिलना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग आपका समर्थन करेंगे। हमको पता है कि आप सभी लिविंग बीइंग्स वहां धोखे में है, केवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं, इंसान और सभी जीव जंतु जानवर सब कोई अगर धोखे में है, पहाड़ अगर धोखे में है, हिमालय अगर धोखे में है, उससे आने वाली नदियां धोखे में है, तो जीवन ही धोखे में है। तो जीवन बचाओ, यही लद्दाख बचाओ का एक संदेश और उद्देश्य होगा। तो हमको लगता है कि कविता, आशीष भाई सबने जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज एकत्रित लाया है, तो एक इंडियन सिविल सोसाइटी ही नहीं, इंडियन आंदोलन जीवी आपके साथ है, इस पर निश्चित रूप से आप विश्वास रखना। अगर हमें सिग्नेचर कैंपेन करना है कि हमको भी एक साथी समर्थन में फास्ट पर उतरना है कि हम लोगों को ये न्यू कॉलोनियलिस्ट डेवलपमेंट पैराडाइम को चैलेंज करने के लिए, आशीष भाई ने अभी कहा, जैसे विकल्प की बात पूरी लद्दाख से निकलकर पूरे देश के सामने रखकर आने वाला चुनाव जो है, ये समय अगर सही है तो चुनाव को चुनौती मानकर हम लोग हमारा जो अल्टरनेटिव है वो कैसे हर राजनीतिक दल तक पहुंचाएंगे, और जिनके मैनिफेस्टोस कहे जाते हैं पर वो लेटेंट होते हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, तो उस पर आप जो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये नोटराइज नहीं होते हैं, आश्वासन होते हैं और वो पाले नहीं जाते हैं। ये पूरी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया जो आपने अपनाई है और जो चाहिए है वो बहुत अहम है, और क्लाइमेट जस्टिस के लिए भी ये जरूरी है। तो 6 शेड्यूल तो सब जगह एप्लीकेशन होना चाहिए, लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा ये होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का पहले भी प्रयोग केरल में कभी हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ने कभी किया था, कोई मुश्किल नहीं है। बेरोजगारी से सामना करने के लिए, प्रकृति बचाने के लिए, प्रकृति निर्भर समुदायों को हक देना, ये अहम बात है। जो प्रकृति से केवल लेते हैं और उसको बेचते हैं कमोडिफिकेशन लाकर डेवलपमेंट पैराडाइम में, उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। तो लद्दाख के जनता को सलाम और वांगचुक जी को सलाम, और मैं यही कहती हूँ कि हम लोग, आप जो सुझाव करेंगे कि हमसे क्या अपेक्षा है, वो लद्दाख के साथ साथ हिमालय और देश बचाने के लिए जरूर अपनाने को तैयार होंगे। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेधा, आपने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। दरअसल जब इन सुझावों को हम कंपाइल करेंगे, मुझे लगता है बहुत अहम सवाल। मैं अरुणा रॉय जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं परिचय नहीं दे रही हूँ किसी का, चैट पे आशीष लिख रहे हैं, ये सब जाने माने लोग हैं, हम इनको रोज पढ़ते हैं, इनके साथ काम किया है। तो अरुणा जी, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, प्लीज स्पॉटलाइट अरुणा, can you
start your video, Aruna. Unmute. Is Aruna there? Aruna, aren't you upgraded? Yeah, we have added us. Oh, we are just upgrading you, Aruna. You're just being upgraded. You're just being upgraded. Have we upgraded her? Yes, please switch on your video, Aruna ji. Yeah. Can you see me? Can you hear me? Yeah, a spotlight, Yeah, Aruna, please. अच्छा, मैं बहुत ही ब्रीफली बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें कह दी है और मेधा ने डिटेल में सारे बातें बता दी है, मगर कुछ एम्फेसिस के लिए मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो सोनम भाई को और सज्जद भाई को सलाम, सारे लोग जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं सबको सलाम। मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना रोजगार अभियान राजस्थान और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के तहत बोल रही हूँ। उनके भी सबके जितने भी साथी हैं वो आपके साथ हैं, और भी लोग साथ हैं। मैं नाम और लिस्ट नहीं पढ़ना चाहती, मगर हम सब लोग आपके साथ हैं। आपकी जो डिमांड है 6 शेड्यूल की बहुत ही वाजिब है, क्योंकि यदि ये देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है और फेडरल कहता है, तो फेडरलिज्म में सबसे पहले अपने खुद के निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तो किस किस्म का फेडरलिज्म है? तो जिस तरीके से आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी आवाजें को बंद किया जा रहा है, आपके सोच को खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे आपके साथ। जितने दिन आप संघर्ष करते हैं उतने दिन हम भी आपके साथ हैं। तो स्टेटहुड आवश्यक है, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वादा तोड़ो का भी एक अभियान अलग से आपके हिस्सा में आप शुरू करें, जिसमें कितने भी जिनके वादे थे जिनको वो तोड़ रहे हैं, तो उसमें भी एक छोटे छोटे आंदोलन भी हम करें और उसमें भी हम लोगों का फायदा होगा कि क्या वादा किया और कैसे तोड़ रहे हैं। और हमें लग रहा है कि जो पर्यावरण के साथ और विकास को लेकर जो हमारी परिभाषा है, जिसके आपके ऊपर इतना हमला हो रहा है, वो भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग अलग से लड़ेंगे। मगर मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यही है कि आप अपने फेडरलिज्म के, स्टेटहुड के और शेड्यूल 6 के आप बिल्कुल आगे होके लड़े। और यदि आपको सूचना के अधिकार के तहत कुछ भी करना है तो आप करें, और जरूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कितने भी हमारे ऊपर सूचना के अधिकार पे हमला हुआ है, उसको उपयोग करते हुए अभी काफी सारे चीजों में हम लोग कुछ सफलता भी पाए हैं, तो उसको आपको बिल्कुल आगे ले जाना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म के तहत आपके जितने भी मुद्दे होंगे उनमें हम लोग अब साथ हैं। मुझे 2-3 एक सुझाव है। एक तो है कि आप एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको यदि मीडिया इग्नोर कर रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप एक किस्म से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे इंडिया के जितने मीडिया है उनको बुलाएं। जैसे हम लोग आज 500 लोग जुड़े हैं, क्यों नहीं हम मीडिया को जोड़कर उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। एक मेरा मुद्दा ये है, आप जैसे ठीक समझे उसके बारे में। दूसरा है कि हम डिमांड करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली एक डेलीगेशन को भेजे, ताकि ये आमरण अनशन के जो लोग बैठे हैं उनके मुद्दे को सुने, लेह लद्दाख जाए और उनको एड्रेस करें। ये क्या है, चुनाव का क्या मतलब है, आने वाले चुनाव का क्या मतलब है? जब आप बेसिक लोकतांत्रिक मुद्दों को नकारते हैं तो फिर उसका क्या मुद्दा है, क्या मतलब है, इसको हम लोग आगे बात को उठाएं। हम आपके साथ हैं, इस मुद्दे में भी साथ है, और अन्य आपके जो संघर्ष है उनमें सब में साथ है। हमारे तरफ से आप लोगों को मुबारक, आप लोगों को कहते हुए कि आप लोगों के साथ हम रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे तो है ही है, मगर हम लोग अपने संवैधानिक हकों को भी पूरी तरीके से लेंगे। यदि हिंदुस्तान आजाद है तो सब लोग आजाद है, तो हमारे संवैधानिक हकों को भी लेके रहेंगे। और मैं अंत में यही कहूंगी कि आप सबको लोगों के साथ हम हैं। सबको जिंदाबाद, हमारे तरफ से शुभकामनाएं और मुबारकबाद। बहुत कविता, बहुत मैं जस्ट एक वाक्य जोड़ना चाहूंगी कि जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से स्टेटमेंट जो निकला है, वो अपने सबके स्टेटमेंट्स उन तक पहुंचे हैं कि नहीं, और वो सब मिनिस्ट्री तक, यूनियन ऑफ इंडिया में गए हैं कि नहीं। और कल तो दसों लोगों ने महाराष्ट्र में सभी ने उपवास किया है समर्थन में, तो ये सब बातें भी कहीं लद्दाख के साथियों को खबर पड़ रही है कि नहीं, ये आप ही अंदाज ले लीजिए। Thank you so much for that addition. Can we get Henry? He has to leave.
Can we get Henry first? I hope he's still here. He seems to have left. He just sent me a message that he had to move on. We go ahead with Shekhar Pathak. Shekhar Pathak ji, aap please. Most welcome. Himalayan environmentalist. Shekhar Pathak ji, I'll just also connect with him. So let's go next with Mr. Harsh Bandar. Please, Harsh ji, आप बोले. साथियों जिंदाबाद. मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा. बहुत लोग हैं. हम लोग देश भर से लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम बहुत इज्जत करते हैं कि आपने ये आंदोलन सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं, लेकिन वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के जो नॉन ह्यूमन लाइफ है उसके संरक्षण के लिए, जो वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशंस हैं उनके हकों के लिए आपने एक लड़ाई शुरू की है. और गांधी जी की बात याद आती है मुझे कि जब सरकार नाइंसाफी करती है तो हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी है कि हम उस सरकार के सामने अपनी बात मतलब हम अवमानना भी करें और एक सिविल डिसोबीडियंस एंड रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं. आपकी इस लड़ाई में आप कामयाब हों. 6 शेड्यूल और लोकतांत्रिक हक इतने बेसिक राइट्स हैं जो आप चाह रहे हैं, लेकिन जो आपकी बातों को सुनते हुए, सोनम जी की बातों को सुनते हुए मुझे हाल ही में मणिपुर की बात याद आई, जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कॉर्पोरेट इंटरेस्ट उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वहाँ के लोगों के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनके हकों को किस तरह से उस पर वार हो रहा है. और हिंसा का वो भी एक बॉर्डर स्टेट है. उत्तराखंड में जो हम लोग देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं, देश भर में जो देख रहे हैं. मुझे लगता है कि आपकी लड़ाई कॉर्पोरेट टेक ओवर के खिलाफ भी है. तो ये सारे तरीकों से बस इतना हम कह रहे हैं, देश के चारों कोनों से लोग आपकी लड़ाई में आपकी इज्जत बहुत करते हैं, आपका समर्थन पूरी तरह से करते हैं. और जिस तरह से भी आपकी लड़ाई में कामयाबी आए उसमें हम लोग सबका फर्ज भी बनता है कि हम आपका साथ दें. तो सोनम जी, आपको जिंदाबाद, और आपके सभी साथियों को जिनको हमने अभी सुना, आप सबको जिंदाबाद. जी. थैंक यू सो मच हर्ष. आई थिंक अपने ही लोकतंत्र में एडवर्सरियल होना, नॉन कोऑपरेशन करना, बिल्कुल वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य को और अच्छा करती है. थैंक्स फॉर स्टेटिंग दैट. I will now invite Henry. Has Henry joined? Has Henry joined us? Can he be upgraded? He said he was joining. Not here. Okay. Has Shekhar been upgraded? Shekhar said he was very much in it. Shekhar ji? कविता, रोहित प्रजापति गुजरात की भी आवाज उठनी जरूरी है. हाँ नहीं, रोहित ट्रैवल में थे तो उन्होंने मना, उनको सबसे पहले हमने इनवाइट ही किया था. Shekhar was there earlier, but yeah, just a minute. He's calling me. Shekhar ji, you are not in the Zoom. So while he joins, maybe the others, Apurvanand ji, Meher ji.
Suresh, will you be speaking? Yeah. Suresh wants to come in a little late, I think, till Shekhar joins and I follow up again on Henry. I think we can go ahead with Mr. Om Prakash Bureta, Vijay Bhatt, and then we take Apurvanand Mihir and others. Suresh wraps up. Apurvanand can come in a bit later. So please invite Mr. Om Prakash Bureta. जी हम अब यहाँ पर Please हिमाचल introduce yourself. ओम प्रकाश जी इस वक्त भारत ज्ञान विज्ञान समिति के महासचिव हैं. He is BGVS General Secretary of the country, National BGVS General Secretary. We welcome you, Om Prakash ji. Please go ahead. And it's from Shimla, Himachal. जी धन्यवाद. हम यहाँ पर जो लड़ाई लद्दाख में सोनम और उनके साथी लड़ रहे हैं उनके साथ हैं, और वो लड़ाई सिर्फ हमारे लिए अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा. इसी तरह का जो त्रासदी है वो हम जोशीमठ से लेकर हिमाचल में भी देख रहे हैं. उसमें बहुत सारे जो एक पूंजीपति विकास का जो एक पूरा दृष्टिकोण है हमारी सरकारों का, और लोगों को अपने योजना के साथ नहीं जोड़ने का और लोकतंत्र को एक गला घोंटने का, वो पूरा का पूरा हम हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी और लद्दाख में हम उसका विरोध कर रहे हैं, और उसमें हम उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं. और बेशक हम दूर हैं, पर हमारा पूरा का पूरा समर्थन उनके साथ है. और जैसा कि कविता जी ने बताया कि हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ की तरफ से पूरे देश में जो हमारे हजारों लाखों वॉलंटियर्स हैं वो आपके साथ हैं, और संघर्ष में हर कदम में आपके साथ खड़े रहेंगे. मैं बहुत संक्षेप में दो बातें कहना चाहता हूं. हिमाचल प्रदेश जो कि इसी तरह का एक इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर पिछले साल बहुत भयंकर बाढ़ आई, हजारों लोगों की जान गई, करोड़ों लोगों रुपयों का नुकसान हुआ. उसमें भी हम देखते हैं कि जो विकास टूरिज्म को बढ़ाने का, हाइडल प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने का और 4 लेन्स को बढ़ाने का, वो हमारे सामने है. हिमाचल प्रदेश में अभी 168 के करीब हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं. 2030 तक 1000 के करीब करने का हिमाचल सरकार का प्लान है. तो जो त्रासदी हम लद्दाख में देख रहे हैं वो हम उत्तराखंड और हिमाचल में भी आने वाले समय में देखेंगे और हम महसूस भी कर रहे हैं. और इसमें मुझे ये कहना है कि हम जो लोग जिस समय बात कर रहे हैं, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक पीपल्स कमीशन ऑन हिमालयस होना चाहिए. उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उनका कहीं ना कहीं एक आवाज उठनी चाहिए, और एक साझा आंदोलन हिमालय को बचाने का होना चाहिए. और उसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के सभी जन संगठनों को और सभी स्वयंसेवी संगठनों को, सभी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए. उसके प्रयास हो भी रहे हैं और आने वाले समय में और भी होना पड़ेगा. और 3 बातें जो हमें करनी चाहिए आने वाले समय में: एक, लोगों को एजुकेट करने का; दूसरा, लोगों को कलेक्टिवाइज करने का; और तीसरा, एडवोकेट करने का. अगर हम ये सब कर पाए तभी हम विनाश से अपने हिमालय को बचा पाएंगे. अभी हम हिमालय की बात कर रहे हैं, पर हमारे देश में जिसमें हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति में हम काम करते हैं, तो कोस्टल एरिया से लेकर जो मध्य भारत है उसमें अनेक तरह की जो त्रासदियां हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में, उनको भी आवाज देंगे. पर अगर हिमालय को बचाना है तभी ही हमारे मैदान बच पाएंगे. तो मैं सिर्फ इन चंद शब्दों के साथ कि आज हम एक मुद्दों की बात को ज्यादा डिटेल में एक्सपेंड करते हुए नहीं कर रहे हैं. हम आज लद्दाख के साथ खड़े हैं, हिमालय के साथ खड़े हैं और अपने भविष्य के साथ खड़े हैं. और इस लड़ाई में, जैसा हमारे साथियों ने कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे. धन्यवाद. Kavita, you're on mute. Has Mr. Prakash. हाँ, शेखर जी आप प्लीज गो अहेड. शेखर जी पहाड़ संस्था से हैं, बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, नैनीताल में हैं. प्लीज गो अहेड.
Shekhar ji? Yeah, we've lost him again. Okay. We'll wait for him to rejoin. Okay. Just watch Mr. Prakash Upadhyay is joining in. Okay. So Vijay Bhatt ji, आप उत्तराखंड से हैं. आप उत्तराखंड में काफी काम कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पे, और आप भी भारत ज्ञान विज्ञान समिति से हैं उत्तराखंड से. नमस्कार, थैंक यू. सबसे पहले मैं पूरे लद्दाख के लोगों को और वांगचू जी को, सोनम जी को सलाम करता हूं कि आप पूरे हिमालय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं. हिमालय जो है वो इस बड़े भूभाग को जीवन देता है, और हिमालय में जरा सी भी गड़बड़ होना, वो इन्वायरमेंट की दृष्टि से या किसी और दृष्टि से जो भी गड़बड़ होती है, उसका प्रभाव एक बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है. वो मैदानी हिस्सा भी है. जो लद्दाख के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, खाली लद्दाख की लड़ाई नहीं है, वो हिमालय की लड़ाई है, और हम सब उस लड़ाई में उनके साथ हैं. जैसा कि बताया गया है कि उत्तराखंड विशेष रूप से हम तो भुगत रहे हैं उसको. स्टेटहुड हमारे पास में है. स्टेट बना था, उसकी जो इच्छाएं थी वो वही होती हैं जो सबकी हैं, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं. लेकिन जो प्लानिंग है, जो उसका जो सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है, और उससे जो है वो जो डेवलपमेंट का, जो स्टेट का जो अपना विचार होता है, अपना प्रोग्राम होता है, अपने अनुरूप, वो नहीं बन पाता. तो अभी तो ये स्थिति हो गई है कि डबल इंजन के नाम पर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन, और उसमें स्टेट नकारा सा है, ऐसा लगता है. हम लोग तो केदारनाथ की 2013 आपदा से लेके रिसेंट सिलक्यारा वाला जो टनल में मजदूर फंसे हैं, हम उसको भुगतते हैं, यहाँ के लोग भुगतते हैं. चाहे वो विष्णुगाड़ परियोजना हो, चाहे वो अपना धौली गंगा वाली परियोजना हो, और भी कई इस ढंग के पूरा जोशीमठ धंस रहा है, ये सब यहाँ हम लोग देख रहे हैं उसको. लेकिन सरकारें सब जगह कान पे अपनी रुई डालकर अपने जो उनका जो अपना धंधा है उस पर चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाओ, चौड़ी करो, नदियों को रोको, ये सब काम बहुत बखूबी चल रहा है. और उसके पीछे वजह मैं आपको एक जरा सा उदाहरण दे देता हूँ कि सिलक्यारा सुरंग जो बनाने वाली कंपनी है ना, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, उसने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर 55 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को दिया है. तो ये जो गठजोड़ है एक कंपनी का, बनाने वाली कंपनी का, सरकारों का, ये गठजोड़ इस पूरे विकास की नीति को आगे खोलता है. तो ये जो सवाल है, ये एक राजनीतिक सवाल भी है और हमारे जिंदा रहने का सवाल भी है. मैं इतना ये कहूंगा कि सबसे बड़ा जो है, जैसे कि मेरे तो जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश घुरेटा कह चुके हैं कि हम सब आपके साथ हैं, और इस लड़ाई में पूरे हिमालय की जो रेंज के अंदर जो संघर्ष हैं लोगों के, और जो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम सब आपके साथ हैं. थैंक यू. So the struggle will have to be done collectively along the entire Himalayas. Mr. Shekhar Pathak is still trying to join in through some other number. I don't know whether he's as yet joined. So we will now take our speakers, Apurvanand, Mihir, and I think Gohar had said he'll join towards the end. So please, Apurvanand, please come ahead and please spotlight him. Is he there? Yes, I'm here. Thank you. Hello. Yeah. Thank you. Are you not switching on? Yeah, thank you. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं सोनम वांगचुक के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करता हूँ उनके संघर्ष के साथ और लद्दाख के लोगों के संघर्ष के साथ. और मैं ये समझता हूँ कि यह एक तरह की खुद मुख्तारी की लड़ाई है. ये पर्यावरण का प्रश्न है, लेकिन यह हमारे सामने 2019 में ही साफ था, 5 अगस्त को, जब यह फैसला हुआ कि इसका असर चौतरफा होगा. किया यह गया था सोच और लोगों को
कहा जा रहा था, खासकर हिंदी भाषी इलाकों में, कि ये इलाके अभी तक पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं थे और अब हमने 370 हटाकर इन पर कब्जा कर लिया है। तो ये पूरी भाषा कब्जे की भाषा थी और कब्जा हर चीज़ पर, प्राकृतिक संसाधन पर, वहाँ के लोगों पर, हर चीज़ पर। यह शुरू से जाहिर था कि एक तरह से इनको उपनिवेश की तरह देखा जा रहा था। ये उपनिवेश हैं जो तथाकथित भारत है, उस भारत के उपनिवेश हैं और वहाँ अपने प्रशासकों के ज़रिए तय किया जाएगा कि उस उपनिवेश का क्या करेंगे, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेंगे, वहाँ के लोगों का क्या करेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है एक तरह से, वही चीज़ लद्दाख के साथ हो रही है। लद्दाख का एक दूसरा पक्ष भी है जो पर्यावरण वाला है, काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जनतंत्र का और लोगों की खुद मुख्तारी का और उपनिवेशवादी मानसिकता के खिलाफ संघर्ष का। तो जब तक ये सारे संघर्ष एक साथ नहीं होंगे, भारत के लोगों को भी पर्यावरण का मसला समझ में नहीं आएगा। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उत्तराखंड में क्या हुआ, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हिमाचल में क्या हुआ, उन्हें बिल्कुल ही लद्दाख की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझाया ये जा रहा है कि इन सब पर अब भारत का ठीक तरीके से कब्जा हो रहा है। पहले ठीक नहीं था, अब ठीक तरीके से किया जा रहा है। तो इस बात को भारत के भी और लोगों तक ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है और यह वेबिनार या यह जो बैठक है, सभा है, यह इस दिशा में ही एक कदम है। मैं मानता हूं कि लद्दाख का संघर्ष जनतांत्रिक अधिकारों का संघर्ष है, स्वायत्तता का संघर्ष है और वही भारतीय जनतंत्र की जान है और इसलिए मैं इस संघर्ष के साथ हूं और इसमें हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, हमारे जो साधन हैं वो हम सब करेंगे। एक बार फिर मैं सोनम वांगचुक के प्रति एकजुटता जाहिर करता हूँ। उनकी सेहत के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के अलग अलग भागों से लोग इस संघर्ष को अपना संघर्ष मानकर इसमें शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you, Apurvanand ji. As usual, great insights. और ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की लड़ाई दरअसल है. Henry is inside the meeting room. Have we upgraded him? Please upgrade Henry. Meera and others. Yeah, Henry is in. Yeah, we've just given the presentation. Yeah. Can you go Yeah. ahead, Mihir? So, okay, Henry has been upgraded. Okay. Henry is here. Henry is here. He's Yeah. here. Okay. Thank you, Henry. Please show your face. And we are so glad that although a lot of the discussion has been in Hindi and we did not have the time to translate Henry, we could just not be so democratic. I'm really, really sorry. But definitely we will write it up and send it to you. Thank you for rejoining, though I know you had certain commitments. Henry is at People's Watch and runs this Human Rights Defenders Alert. His first concern was that has there been state repression? Have people been pushed back? What is the civil liberty situation? Please go ahead, Henry. Thank you. Thank you, Kavita. Thank you, Meda. Thank you, Ashish, for this joint initiative of yours. Sitting right at the end of the country, this side, it is an expression of solidarity today, this evening, to learn from what is happening in Ladakh and offer solidarity to Sonam Wakchung and all his colleagues who are there on something which is incredible, an 18-day fast as of now. They are fighting for us, and that I think is what is most important. They are not fighting for themselves alone, they are fighting for us. And they are expressing to each one of us across the country, the 500 and more of us who had assembled, that their fight is for democracy, and their fight is for biodiversity. Their fight is for not only protection to their own livelihoods, but also the preservation of the environment and ecology over their areas. It is difficult for us here to understand and propose even what type of solidarity we can have in the times that we are in, the challenges that we are facing.
and in the first round of elections that we are facing across the country. I mean, we happen to be the first in this month. But whatever solidarity actions are planned, you can be sure that together with many other organizations here, including the PUCL and other platforms, we will all be together, because those who are fasting for me are human rights defenders themselves. And we need to take up their cause in different fora. And we are sure that along with all the organizations here, including the NAPM, PUCL, and Ashish, we will be in solidarity. It was more an expression of solidarity at this point of time. Thank you very much. Thank you so much, Henry, for coming back and joining the meeting. Gohar and Shabnam have just left the condolence meeting of Zafar Aga, and they have sent their regrets. But Gohar has actually written a small poem, which he thinks he's going to put it on video and send it across. He wanted to communicate it, but could not do it. So I now invite Mihir. Mihir, I hope you're still around. Please spotlight him. Yeah, Mihir, please go ahead. Can you hear me? Yeah. No, very, very briefly. Obviously, we stand in solidarity with all the Ladakhi people, including the leadership, which is fighting such a brave and bold battle. And whatever we can do, we'll do. As a lawyer, if I speak, I can only say that not granting the statehood is anti-constitutional. See, political betrayal is one thing. Your political betrayal happens. Political betrayal has happened. But there is also constitutional betrayal. So not granting statehood is a constitutional betrayal. Not granting sixth schedule benefits is a constitutional betrayal. There is a huge amount of violation of fundamental rights, such as right to autonomy of culture, right to equality, and various other fundamental rights. I mean, you can just pick up each fundamental right and you can see it being violated there. Okay? So I think it's very important that we see both the political, socio-economic, political, as well as the constitutional betrayal. From PUCL, I can only say that if at all there is any idea, there is any move to challenge these constitutional betrayals in the Supreme Court or the High Court, PUCL will always support that effort in whatever way we can. And also, what we were talking about, the corporatization of Ladakh, which is going to lead to major climate change, major environmental destruction. And I think that may also be, sometimes you may need to fight it legally by taking up individual instances of these violations. Again, PUCL will stand in support in whatever way we can. So that's all I wanted to say, and bravo to all of you who are fighting. Thank you very much. By any chance, Shekhar Pathak ji, आप बड़ी कोशिश में थे कि आप जुड़े. I think we now, if he has not joined us, I think our last speaker would be, I hope I've not left anybody, would be Suresh. Suresh, who's General Secretary of PUCL and also an advocate. Mihir is also a very learned advocate, senior advocate, and also Vice President of the PUCL. Please go ahead, Suresh. I would, first of all, on behalf of the entire PUCL family and the human rights groups from across India, salute Sonam Wangchuk, Ms. Kunzang, Sajid Kargili, Sevang Namgale, Sering Torje, and all the others who have been fighting this valiant struggle. As many of you have said, it's not a struggle for Kargil, it's indeed a struggle for the heart and soul of people. Many issues that you have raised are issues which are relevant all across India. I'll just be very brief because a lot of people have spoken a lot of issues. I'm just trying to wind up and say, what can we do as part of PUCL along with the other friends who together have organized this thing, NAPM and VS, and what's the name? Vikalpa Sangam.
and other groups who have contacted me in the last 1 or 2 days. I was in Cochin yesterday for the JP Memorial lecture. Many groups had heard about this, and they said, please carry our voices from the southernmost tip of India to people at in Ladakh, saying that we stand with you. The three things which seem to be something that we all need to do. One would be have a press conference, organize a virtual press conference, calling people not just from India, but also across the world, because this is an issue which is an intersection of a number of issues. There is the ecological issue, there's a larger developmental paradigm issue, there is a constitutional issue, there's a political issue, and very, very staring at our face, climate change issue. 2023 is the hottest year ever recorded in Earth. 2024, they already said it's going to be worse. So we don't know what is going to come. So one thing that we can all think about is to organize a press meeting so that much of this can be taken to the larger press corps in India. There's been very, very poor reporting on this in other parts of India. I don't know how it is in North India. I come from Chennai. So this part of India, the coverage has been very little. Second, I would like to use the PUCL's experience of the anti-UAPA campaign or the repeal UAPA campaign. We were able to bring many, many political parties. We wrote up a short concept note and calling upon the attention of all the political parties of the importance to take a stand on it. This is election time. This is the time when we need to take up these issues, and this is the time also when groups can take it forth. We write to everybody. We write to all the political parties, including the BJP and other people, based on our point of view, and organize a meeting in which we ask them to come and express their stand vis-a-vis the very critical issues that have been raised by our friends in Ladakh. I think that's something that we can do. We need to get all the various political parties to politically commit themselves to this. It's election time, it's difficult time, but I'm sure this is a time which also gives us the space to push it. The third and the very important thing is to come out with a fact sheet about what is happening there. Variety of issues have been put. Already Vikalp Sangam had already come out with a very, very concise type of a document. Maybe we can relook it in the light of the several issues that have been raised here. And we spread it through the large number of groups who participated today. Today has been it's phenomenal number of groups which have been attending this meeting. And also drawn parallels to what's happening in Ladakh is also happening in Uttarakhand. It's happening across the entire Himalayan region. I think a small note that can be brought about, translated into various languages and spread all across through our various networks. I think these are three things that we can do in the immediate, the next, say, 1 month or 2 months' time. This is something that I'm talking on behalf of Kavita, Mihir, and the PUCL, say that we would be committed to doing this and to take it forward. Lastly, I would like to just tell our friends in Ladakh, you're not alone. We have people from all across country. Today, we have had a classic example of how people have come together. I think we will build on this strength. So strength to you, strength to all of us, because it's a fight for democracy. It's a fight for our very notion of what India should be. Yeah? Thank you to all the friends and strength to all of you. Zindabad. So we must thank Suresh for suggesting the political parties. I was very keen that we bring them in this meeting, but of course, in the middle of elections, you can't possibly bring them. Although I did get a message from Mr. Jairam Ramesh expressing his solidarity. So we have Shekhar Pathak ji. Shekhar Pathak ji has just had an eye surgery. फिर भी आप जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, हम लोग इतने अनपढ़ हैं कि हम लोग जुड़ ही नहीं सके। अभी हमारा एक बच्चा आ गया, उसने कनेक्ट कर दिया। फिलहाल समय नहीं है। लद्दाख वासियों के लिए जुले और सलाम। और सोनम तो हमारे पुराने मित्र हैं, उनकी उपलब्धियों को हम लोग जानते हैं, उनका जो समर्पण है अपने समाज के प्रति उसको हम सब लोग जानते हैं। हमारे ज्यादा साथियों ने और विकल्प संगम के साथियों ने, आशीष ने और कविता ने और अन्य हमारे अनुभवी लोगों ने बहुत विस्तार से बहुत सारे आयामों पर आपको बात बताई है। मेरा ये कहना है कि लद्दाख की जो लड़ाई है वो संविधान में दिए गए जो हमारे अधिकार हैं उनकी लड़ाई है। वो न सिर्फ संविधान की लड़ाई के अधिकार हैं, बल्कि वो अधिकार इस बात के लिए भी हैं कि हमारे सिविल राइट्स का सम्मान होता है कि नहीं होता है। दूसरा बड़ा पक्ष इसका है हमारे प्राकृतिक अधिकार, यानी कि हमारे नेचुरल राइट्स हैं वो कायम रहें। तीसरा, हमारे हिमालयवासी होने के नाते जो अधिकार हैं हिमालय को बचाने के और उसके कारण पूरे उत्तरी भारत को बचाने के और जो क्लाइमेट चेंज में तेजी है उसको नियंत्रित करने के अधिकार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं।
दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं अभी लौट रहा हूं आई ऑपरेशन से पहले नॉर्थ ईस्ट से, तो 6th शेड्यूल के कितने पॉजिटिव परिणाम इस बहुत ही नरकपूर्ण व्यवस्था के भीतर भी हो सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में देखा जा सकता है। कभी कभी ये लगता है कि राज्य के अधिकार से कम नहीं है वो अधिकार, और नॉर्थ ईस्ट में राज्यों के भीतर भी 6th शेड्यूल के अधिकार को लोगों ने अर्जित किया है, पाया है, और उसके कारण उनकी भाषाएं बची हैं, काक बोराक हो, चाहे उसके बाद खासी भाषा हो, और नॉर्थ ईस्ट की कोई और भाषा हो। तो उस संविधान प्रदत्त अधिकार की लड़ाई जो लद्दाख के लोग लड़ रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन लड़ाई इससे बड़ी है, वो पर्यावरण की बड़ी लड़ाई है। इसलिए सोनम और सज्जाद और हमारे तमाम साथी जो वहां पर अभी अनशन पर हैं, और हमारे ये देश से जुड़े हुए जो तमाम तमाम दोस्त हैं, लड़ाकू दोस्त हैं, वे सब ये समझ रहे होंगे, और जो नहीं समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे कि हमारे लद्दाख के साथी इंडस के बिहाफ में बोल रहे हैं, सुरु नदी के बिहाफ में बोल रहे हैं, श्योक और वहां की जो दूसरी नदियां हैं, नुब्रा, उसके बिहाफ में भी बोल रहे हैं। ये लोग हमारे बहुत बड़े ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बिहाफ में भी बोल रहे हैं। ये सोमोरिरी लेक और पोंगोंग लेक के बिहाफ में भी बोल रहे हैं। वहां के पश्चारकों के बिहाफ में बोल रहे हैं, पश्मीना गोट के बिहाफ में बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिज्म की बड़ी परंपरा, इस्लाम की बड़ी परंपरा और द्रोकपा जैसे नीली आंखों वाले लोगों के बिहाफ में भी ये लोग बोल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लद्दाख में हो रहा है वो अलग से नहीं हो रहा है, वो पूरे हिमालय में हो रहा है। लूट पूरे हिमालय में हो रही है। सिर्फ अभी जो संघर्ष को बड़े नुकीले तरीके से जिन्होंने प्रस्तुत किया है वो लद्दाख के लोग हैं। संघर्ष जोशीमठ में हो रहा है। उत्तराखंड खुद अंकिता के लिए न्याय मांग रहा है। जोशीमठ के लोग पिछले 1.5 साल से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिक्किम के लोग, सिक्किम के लेप्चा इस पिछले साल के फ्लड के बाद अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसा हमारे बहुत सारे अनुभवी साथियों ने परामर्श दिया कि जो हिमालय संबंधी एक पूरा का पूरा इस तरीके का अभियान जुड़ना चाहिए, जो जुड़ा हुआ भी है, जिसमें हम आपस में हिमालय के लोग भी संवाद कर सके, नंबर 1, और नंबर 2, हिमालय की परिस्थितियों को देश के अन्य मित्रों के साथ सामने रख सकें। लड़ाई नर्मदा की हो, लड़ाई नॉर्थ ईस्ट की हो, लड़ाई कश्मीर की हो, ये सब जुड़ी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लद्दाख के लोगों को अब ये भी देखना चाहिए कि 370 को हटाते समय हम लोगों ने जिस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहिए था, हम उसमें फेल हुए। अगली बार हमें फेल नहीं होना है, क्योंकि जिस समय हमने 370 में इस गलत तरीके से उसको बदलने का जो काम हमारी सरकार ने किया, उस समय हमको प्रतिरोध करना चाहिए था। अगर 370 बदलना भी था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलकर बदलना था। उसको बदलने का हक कहीं से भी न संविधान और न हमारी जनतांत्रिक परंपरा केंद्र सरकार को देती है, ये समझने की बात थी। लेकिन वो बात तो छूट गई। अब आगे की बात आगे आए कि हमारा संघर्ष यूनाइटेड होना चाहिए, और हमारे पूरे पारिस्थितिक सवाल ये जुड़ा हुआ है। 2013 में जो उत्तराखंड में हुआ, पिछले साल जो हमारी ब्यास नदी में, पार्वती नदी में हिमाचल में हुआ, और जो पिछले ही साल हमारे सिक्किम में हुआ, और उससे पहले आपको पता है कि लेह में किस तरीके की फ्लड आई, इंडस में किस तरीके की फ्लड आई, और हमारे ग्लेशियर्स कैसे टूटे, ये सब हमें बताते हैं कि हमें संवैधानिक जनतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ, फेडरलिज्म के अधिकारों के साथ साथ पर्यावरण के, पारिस्थितिकी के अधिकारों को भी आगे लाना होगा। लद्दाख की लड़ाई की एक और विशेषता है, भूटान के लोगों की तरह, सिक्किम के लोगों की तरह, कि उन्होंने सिर्फ मनुष्य के अधिकारों की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने लद्दाख के जो वनस्पतियां हैं, जो वहां के जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा की बात भी की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपील है और बहुत बड़ा एक कंसर्न उस अपील का है। मैं मेरे 2 साथी यहाँ पर हैं, प्रोफेसर प्रकाश उपाध्याय और डॉक्टर ललित पंत, हम तीनों मिलकर के उत्तराखंड के अन्य साथियों की ओर से अपनी सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। सोनम और तमाम मित्रों के स्वास्थ्य के लिए दुआएं देते हैं। अपने स्वास्थ्य की चिंता सोनम को और सोनम के साथियों को जरूर करनी होगी, क्योंकि अब ये देह जरूर चाहिए आगे की लड़ाई के लिए। संघर्ष जारी रहे, हम सब आपके साथ हैं। हमारे हिमाचल के साथियों ने, उत्तराखंड के साथियों ने अलग अलग तरीके से इस संघर्ष को सहयोग देने की बातें अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग मंचों से की हैं। उन सब की ओर से हम दोबारा आपके साथ हैं और आप सबको सलाम करते हैं। और कविता और क्या बोलते हैं, आशीष के लिए हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ भागते हुए, पहाड़ों को भागते हुए हमें दिल्ली में पकड़ लिया और हम आप सबको सुन सके
और इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सके। आप सबको नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, आप अंततः जुड़ ही गए, ये बहुत ही बढ़िया रहा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वहां की लड़ाई पानी के लिए भी है, जीव जंतु के लिए है ही, लेकिन ग्लेशियर्स जिस तरह रिसीड कर रहे हैं या बिक गए, बताया गया, मैंने इसलिए बहुत ही नदियों और घबराहट। ग्लेशियरों का नाम लिया। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो मैं कविता कुरुघंटी जी, जिन्होंने काफी अंतिम दम तक कोशिश की कि वो जुड़ जाए गौहर की तरह, तो क्योंकि गौहर की तो नज्म थी, तो वो तो उन्होंने भेजी नहीं, वो अलग से भेजेंगे वीडियो बना के। लेकिन कविता ने एक मैसेज भेजा है, मैंने उसको पोस्ट कर लिया, बट आई विल रीड इट। I express my deep and humble solidarity with the Ladakis struggling for autonomy, for sustainability and justice. The leadership of Sonam Wangchuk is superbly inspiring. He's reconnecting his fellow citizens to not just important goals, but also with critical Gandhian concepts of satyagraha and ahimsa at a time when our so-called Vishwaguru rulers have forgotten about every decency in public life. Sonam Wangchuk's mission and methods are bound to obtain victory. We are all with the Satyagrahi Ladakis. We take inspiration from you. We demand that the union government accept your fair, just, and wise demands immediately. So this is thanks to Kavita Kuruganti and the message. So yeah, so our speakers, there were some other people who wanted to speak, but they're not in the room anymore. So I hand it over to Srishti to conclude this meeting. Thanks everybody. कविता एक वाक्य कहना है। हाँ, ये साल जो है चिपको के 50 साल हो रहे हैं। अरे वाह। आज से ठीक 50 साल पहले गोपेश्वर चमोली के लोगों ने चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत और गौरा देवी और तमाम साथियों के नेतृत्व में फाटा, और उसके बाद जो है आपके रैनी में सफलता प्राप्त की थी। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लद्दाख के लोगों ने चिपको आंदोलन के 50 साल को एक नई मसाल जला करके किया है। Thank you so much. इसलिए उनको और अतिरिक्त सलाम हम सब देते हैं। Thank you. So, Ashish, if there's anything that you think is important that we need to share, because how do we take this thing forward? So many people have joined us and they would like us to respond. So over to you, Ashish and Shrishti and Meera, if you people would like to wrap up in your way, please go ahead. Yeah, I think Srishti and Meera should have the last word. I just want to say quickly कि 3-4 suggestions जो आए हैं follow up action के लिए. Of course, the 3 networks here will try and take those forward, but just to mention them, एक तो of course ये है कि decentralized actions, विकेंद्रित जितने भी लोग action कर सकते हैं, जिसमें कि joining the fast, doing local demonstrations, meeting up with young people, students, and talking about Ladakh and the Himalaya as whole, ये सब तो होना ही चाहिए. लेकिन साथ में 4 और जो मुद्दे आए हैं विच आई थिंक वी शुड डिस्कस लेटर. एक तो पीपल्स कमीशन फॉर हिमालय का एक आइडिया आया है, शायद पहले भी आइडिया था, उसको कैसे आगे लिया जा सकता है, जिसमें लद्दाख ऑफ कोर्स इज क्रूशियल पर पूरे हिमालय की जो स्थिति है, जिस कई लोगों ने बात की. सेकंड है वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल और ग्लोबल और बोथ. तो ये भी हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं. आई थिंक द लद्दाखी पीपल हैव बीन ट्राइंग टू एड्रेस द प्रेस अ लॉट, बट ऑफ कोर्स द नेशनल प्रेस इज सो फार इग्नोरेंट. तो हम लोगों की तरफ से अगर अगुवाई हो सकती है टू हेल्प देम टू रीच अक्रॉस टू नेशनल एंड ग्लोबल प्रेस. द थर्ड वन इज आउटरीच टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये भी वहाँ से तो कोशिश हो ही रही है, लेकिन हम लोगों की तरफ से जितना भी हो सकता है, चाहे वो एक जॉइंट स्टेटमेंट के हिसाब से हो, हम इसे कई नेटवर्क में स्टेटमेंट्स निकाले हैं, इनको एक तरह एक कंसोलिडेट करके एक सिंगल 2-3 पेज का स्टेटमेंट निकल सकता है, which can also then form the basis for I think what Suresh was saying, a joint briefing note जो अलग अलग भाषाओं में हो और अलग जहाँ पे भी जिस प्रकार से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. So these are 4-5 ideas that have come, and let's discuss how we can take these forward. Over to Srishti. Yeah, so just before Srishti I wanted to add. Yeah, Karnam. Yeah, and Srishti, I'll need a minute just before you come in. Yeah, go ahead, Karma. मुझे भी 1-2 वाक्य कहने हैं कविता.
Yeah, just 1 minute. I just want to, before Karma and Shrishti and others respond, there were some very valuable questions and comments posed in the Q&A. और ये लद्दाख के सभी साथियों के लिए है. Is there any written communication between the government and you on this issue? Can we represent it in the Supreme Court? So if that could be answered, there was another very important point. Are there any international organizations supporting this movement? Will it be possible, or will it be branded as foreign hand to defame the movement? What about the farmers protesting in Shambhu border? Are they supporting you? And Dr. Sudhir Agarwal, क्या सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर होगा? These are some of the critical questions. There are many. Also on the webinar chat, I just thought these 2-3 questions before Shrishti and Meera come in. Shrishti, should we take Karma or would you come first? Medha, आपकी एक line after. Yeah. I just wanted to say कि हम लोगों को immediately सरकार ने अगर 4 मार्च के बाद इनसे डायलॉग नहीं किया है इतने दिन के उपवास के दौरान, तो उसके लिए कुछ आप लोग अभी नए वेज एंड मीन्स में ट्विटर स्टॉर्म वगैरह डालेंगे, पर एक पत्र के एक कैंपेन, लेटर कैंपेन एक चलानी चाहिए यूनियन मिनिस्टर को लिखकर भी, सांसद जो एकमात्र सांसद लद्दाख के हैं उनको भी, और उपराज्यपाल को भी. ये मुझे बहुत जरूरी लगता है. और दूसरा जो अपन ने कहा है कि ऑल्टरनेटिव प्लान जो बनाया ही होगा बना के, उसको अगर इमीडिएटली रिलीज करे ये लोग, अपन भी सब जगह रिलीज करे कि दिस इज द ऑल्टरनेटिव, तो विकल्प संगम भी वो उद्देश्य से काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वो अभी जबकि इलेक्शन कैंपेन स्टार्टेड, ये करना बहुत जरूरी है. फिर भतीजा आया नीचे से, वो जोड़ गए. अभी के जो मैनिफेस्टोज आने वाले हैं सबके कुछ ही दिनों में, इसलिए 2 दिन में ऐसा एक लेटर ड्राफ्ट करें और लेटर के साथ एक शॉर्ट समरी जोड़ दें, और सभी आज के एमपीज को, आइडियोलॉग्स को, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेरर्स को भी भेजना. और आपके मैनिफेस्टो में नहीं आएगा. Medha, you've gone on mute. ये बात करना भी जरूरी नहीं, just to say कि that will affect your vote bank. ये चेतावनी देना जरूरी है, वो लद्दाख में भी तो देनी ही चाहिए. Okay, thank you, Medha. Thank you so much. We are just reaching the meeting conclusion. Karma ji, आप respond कीजिए, and then over to you, Shrishti. And Karma wanted. सॉरी, मैं एक आप सबको पैनलिस्ट को एक बताना चाहता हूँ कि जो 21 डेज का जो अनशन जो हंगर स्ट्राइक है, उसमें मेरे गांव के एक जो रिसेंटली 1 महीना पहले जो रिटायर हुए एक नौजवान सिपाही भी उन्हीं के साथ आज उनका 19th डे है. तो मैं उनको भी बहुत ही मतलब अंशुगली के साथ साथ वो सॉलिडेरिटी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही प्राउड फील हो रहा हूँ कि वो भी अंशुगली के साथ साथ पूरा 21 दिन का वो हंगर स्ट्राइक कंप्लीट करने जा रहा है. यही आप लोगों को थोड़ा सा बताना था. सॉरी, नाम थोड़ा लिख लीजिएगा चैट में या दोबारा बोलिएगा. उनका नाम थोड़ा दोबारा बोलिए. सिरिंग तनबा, नाइट सुबेदार सिरिंग तनबा. अंशुगली की अपडेट में भी बहुत 2-3 बार उन्होंने अपडेट में बताया था, लेकिन वो जस्ट रिटायर हुए 1 महीना ही हुआ मतलब उनका ना. तो वो वैसे भी बहुत एक्टिव था, वो पहले से भी थोड़े फास्टिंग का, उसको बैठने का उनको बहुत मतलब उनको प्रैक्टिस था, वो बैठता भी था 2-3 दिन के लिए. लेकिन ये अपने आप को बहुत वो मतलब वो बहुत ही प्राउडली वो बैठा था. तो मैं बहुत खुश हूँ, और हमारे सारे मतलब गांव के लोग भी बहुत ही मतलब उनको उनकी बहुत आभारी है. बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद. Mustafa, very quickly, you also wanted to say something. Suresh, you also want to come in for a minute before Shrishti and Meera wind up? No. I just wanted to say that Karma ji hand raised.
Okay. So go ahead, Mustafa, very quickly. Yeah, so on the question of whether we want to pursue a legal case, we are still exploring that option. But as of now, as somebody was asking whether we have given any draft to the ministry, they had asked us to give a draft. So we have already given them a draft on sixth schedule and the statehood. And it is a very comprehensive draft, which we have submitted already. But as far as the legal option is concerned, we are still discussing it. So as of now, it is only the hunger strikes. And we are not exploring the option to go to the Supreme Court as of now. I'm the legal person. That's why I thought I should answer this question. Mustafa ji, this is Suresh here. I'm also a Ji. lawyer. Hi, hello. You met him. Yeah. We met him, yeah. You met in Kashmir 2016. Yes. 16, We can just share the legal papers with Kavita ji. We can also have a look at those that you think can be shared. We can put it together as a dossier. We can circulate. Sure. I'll discuss it with my leaders, the Apex and the KDA, and then I can, sure. Yeah. Okay. Thank you so much. Now over to you, Srishti and Meera. I think please spotlight yourselves if you are doing the spotlighting. बहुत बहुत शुक्रिया कविता और सभी लोगों को जो आज हमारे साथ जुड़े, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम बहुत लंबे समय से अभी कॉल पर हैं। बट यही कहना चाहेंगे कि लद्दाख के सभी लोगों के साथ भारत भर के सभी लोग, सारे संघर्षशील लोग जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। और आज हमने बहुत सारे पॉसिबल सपोर्ट के जो काम कर सकते हैं उसके बारे में सुना है। तो आने वाले समय में हम उन सब पे काम करेंगे और जल्द काम करेंगे, क्योंकि इस इशू पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और लद्दाख हमें ये दिखा रहा है, हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से अगर भारत ये कहता है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो भारत के सभी बच्चों को डेमोक्रेसी महसूस नहीं हो रही है। और इसलिए ज़रूरी है कि ये डेमोक्रेसी हम सब महसूस कर पाएं और सच में जान पाएं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इसके लिए हम लद्दाख के सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आंगचुक लेक का शुक्रिया करते हैं कि वो हमें आंदोलन के रूप में समझा रहे हैं। और जैसा शेखर जी कह रहे थे कि वो सिर्फ लद्दाख के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि पहाड़ों के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में और नदी के रूप में भी बोल रहे हैं। तो जो शायद अलग रूप से बोलते हैं, पर उनके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और उनके लिए ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बोल रहे हैं। सो शायद ये हमारे लिए एक चेतना का मोमेंट है और हम सब आज जुड़े हैं और शायद इससे जुड़े रहेंगे। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत सलाम, और हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। मीरा, आपकी तरफ। जी शुक्रिया साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बैठक रहा आज का। बहुत सारे साथियों ने बोला और बहुत सारे साथी नहीं भी बोल पाए। हम देख रहे हैं लगातार लार्जर चैट रूम में अलग अलग राज्यों से साथी इनफैक्ट है, कईयों ने चैट में मैसेजेस लिखा। बहुत सारे सॉलिडारिटी पहल भी देश भर में चल रही है, हम सब देख रहे हैं। अलग अलग क्रमिक अनशन साथी अन्य भी राज्यों में कर रहे हैं। एंड विद इन द हिमालयन कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ पीपल फॉर हिमालय कैंपेन नामक एक काफी व्यापक कैंपेन चल रही है, जैसे बहुत सारे साथियों ने आज भी चर्चा में कहा है। क्योंकि ये जो पूरा चुनौती है वो सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, पर्यावरणीय है, आर्थिक है। तो ये पूरा हिमालय को बचाने की एक लड़ाई है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरा जो हिमालयी क्षेत्र है उस पर जिस प्रकार के आज हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। और वो एक प्रकार से दिख भी रहा है, वहां स्थानीय संघर्ष संगठन जिस प्रकार से एक साथ आ भी रहे हैं। एंड विद इन लद्दाख भी जो हमने मतलब एक बहुत ही एक उत्साहवर्धक एक परिस्थिति अभी हमने देखा है कि जो पहले सरकार का एक रवैया डिवाइड एंड रूल का रहा है, अभी यूनाइट एंड फाइट की जो भूमिका ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ली है, ये बहुत ही एनकरेजिंग है। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सिक्स्थ शेड्यूल का जो एक स्टेटस है वो एक अधिकार है। वो भाजपा ने भले पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया बट उसको अमल नहीं किया। तो इस बिट्रेयल को याद रखना चाहिए लद्दाख के साथियों को भी, और इस आने वाले चुनाव में भी उसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देश का व्यापक लोकतंत्र और व्यापक जो संविधान है उसको बचाते हुए ही हम लद्दाख में भी संविधान और प्रकृति और पर्यावरण को बचा पाएंगे, कॉर्पोरेट से भी और भाजपा के जो जन विरोधी नीतियां भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज की पहल रही है वेबिनार। पिछले हफ्ते यूथ फॉर हिमालय की तरफ से भी युवा साथियों ने एक इसी प्रकार का एक पहल किया, जिसमें भी सज्जाद भाई से लेकर बहुत सारे साथी, आशीष, एंजेला जो आज
यूट्यूब पर शायद वो देख रहे, वो जुड़ने का कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने काफी साथियों को सुना भी, उन्होंने भी अपना सॉलिडारिटी एक्सटेंड किया। और वो जिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक प्रकार से 6 शेड्यूल को पाया भी है, बट बहुत सालों से ये भी अनुभव कर रहे हैं कि कानूनी संरक्षण मिलना या संवैधानिक प्रोटेक्शन मिलना एक पहल है, बट जमीन पर लगातार संघर्ष ये एक व्यापक लड़ाई है, क्योंकि हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। कॉर्पोरेट हमले संसाधनों पर या लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स पर बहुत बड़ा है। इसलिए फॉर द 6th शेड्यूल एंड इवन आफ्टर द 6th शेड्यूल जो स्ट्रगल चालू रहना चाहिए वो तो चालू रहना ही है। बट अभी के संदर्भ में जो इमीडिएट एंड वेरी सिग्निफिकेंट डिमांड्स है लद्दाख के साथियों का, वहाँ जो केडीए है, ले एपेक्स बॉडी है, उनके साथ तमाम जो साथी सोनम भाई से लेकर बाकी मुस्तफ़ा जी हो या बाकी सजाद भाई है, बाकी सभी साथी जो लड़ रहे हैं, उन सभी के साथ हम एकजुटता व्यक्त करते हुए बहुत सारे जो अच्छे सुझाव आए हैं आज के बैठक में, आई थिंक द टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो टू कीप द सॉलिडारिटी कंटिन्यूइंग इन डिफरेंट वेज, लिखते रहना, स्थानिक स्तर पर कुछ आयोजन करना, एंड टू कीप द वॉइस ऑफ Ladakh alive and kicking across the country. This is important, and while connecting it to our larger struggles everywhere, so we extend our complete solidarity to the people of Ladakh, to the People for Himalaya campaign, which is trying to raise this entire issue in a much more comprehensive way, and to all other organizations who have joined us today on behalf of NAPM, PUCL and Vikalp Sangam. We are committed to lend solidarity while completely respecting the democratic rights and agency of the local organizations and movements who are actually leading this struggle on the ground. As solidarity efforts from outside, we will engage with comrades over there, and in whichever way possible, we will continue to lend support. Zindabad. Friends, just before we leave, Rohit Prajapati with great difficulties joined. He just wants to speak for half a minute. Can he be upgraded? Please, can he be upgraded? Can he just say what he has to with great difficulty? He came to some area to get connectivity, to give his little quickly. Rohit, we are like absolutely well beyond time, 20 minutes beyond time. Has he been upgraded? Kavita, while that happens, I just wanted to quickly also thank people who are behind the scenes who made this possible. So Anchal, Arnaz, Chandramouli from Vikalp Sangam, I think your colleague who did the poster, और PUCL, NAPM, विकल्प संगम से और जितने भी लोगों ने पीछे से क्वाइटली जो इसको मुमकिन बनाया है, just want to extend thanks to them. Yeah. So Rohit, you've been upgraded, I think. Yeah. Let me try video also if I can. Yeah. Very quickly. This is very quickly. I'll just post script. Yeah, I know. Only one thing I want to say. मुझे एक ही बात कहनी है कि ये जो लद्दाख का जो संघर्ष है, पूरे देश और दुनिया का संघर्ष है। जो मुद्दे लद्दाख ने उठाए हैं वो पूरी दुनिया ने के अलग अलग लोगों ने उठाए। तो ये बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में के देखने के बजाय ये पूरा जो विकास मॉडल है उसके परिप्रेक्ष्य में देखनी चाहिए वो। And I just want to say one line that out of sight is out of mind की बात हम करते थे, अभी ये हो रहा है out of mind is out of sight। वो एक बड़ा मुद्दा हमको लोगों तक ले जाना पड़ेगा। जिंदाबाद। Thank you for that very quick out of mind, out of sight and vice versa message to us. So friends, I think just before we close, would like to thank all our friends, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हम लोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आशीष होली के तुरंत बाद परसों एक दिन का वक्त देके हमें मेहनत करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन करनी चाहिए। बहुत अच्छे से अब सोनम जी का स्वास्थ्य, बिट्टू सहगल जी भी बोल रहे थे कि उनका स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पैरामाउंट इज हेल्थ। But today is the 19th day. I think it will be the 21st day. So friends from Ladakh, tell us if the 21st day is right for a press conference. We can try tomorrow, but I don't know. I don't know how good it is for North India, where the journalists will at all cooperate and come. But definitely a press note from this meeting
friends. I think that if we can get it even late tonight, that we can definitely push and hold a press conference day after. The other thing is that very simple, if we can get a memorandum, a model memorandum for the entire set of issues that came, I think that is something also in this week we can push, things that we can do immediately would be very, very useful. Medha, you say? Huh. Please take consent of all the organizations and all the persons who have joined also. Yeah. So that their names can be put up. That's all. Yeah. And, I think the people who have joined us don't mind their names being there. Friends, about 209 of us are still here. Do you mind if your name and your organization name be added to this memorandum, to our press conference, to our press release for tonight? Medhaji, that is what added strength to the Repeal PUAPA campaign. We had 160 organizations and people, and about 400 to 500 individuals who signed up. And that forced also the political parties to come. We never thought that they will come. About 15 political parties came to express whatever they needed to say. So I think the pressure of people is very important. So your suggestion is very good. We will put all the names. Yeah. Thank you for that. So just one thing, Ashish, go ahead. one thing to keep in mind, क्योंकि जो chat है ना बहुत ही active रहा है. So one or two of us will have to actually extricate the names, the people and the organizations. वो थोड़ा time लगेगा. आज नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से. You can give it. But I in the can next try. show, If the chat is sent to me, I have volunteers who only work in the night. They that sleep in the copy day. तो कर लिया है. So, Okay, great. No, what I'm saying is that list of names can be released with the press thing day after tomorrow. It's happening. yeah, even that if it is holiday or email, Kavita, you can send. You are such a great mobilizer. You can send to all on the email and then put the it on the press social release media. I can put out if we can get it. Statement. Anyways, we'll discuss that whether we're Statement. putting it out tomorrow or day after, but a press conference or day after. That's what I was thinking. Yeah, I think so. A press release of this meeting by tomorrow. If we can't do it tonight, we must definitely put it out. But the